गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विघ्नेशानमुनी गुरुसस्मरुनी लक्ष्मीस आवाहिले आम्ही गुंतवणूकशास्त्र शिकण्या हे सत्र आरंभिले। केव्हा स्थावर आणि जंगम कधी कोठे किती गुंतवू चर्चा मंथन तज्ञ बोध मिळता हे प्रश्नही सोडवू। ठेवी भाग सुवर्ण पोस्ट अथवा रोखे तसे फंडते वृद्धी भांडवली मिळो कर नको पर्याय हो कोणते। कोठे उत्तम रोखता सुगमता लाभांश वा व्याजही कोठे गुंतविणे सुरक्षित असे नोंदीस कैसी वही। सन्मार्गे धनसंपदा मिळविणे अत्यंत आवश्यक पैसा ध्येय नसे म्हणून जपणे जाणीव सामाजिक। ज्ञानाचा उपयोग गुंतवणुकी साठी सदा होऊ दे हे सारे समजावया सुमती दे आम्हास तू शारदे। Good morning, all. We are back with you with another program, and this program has been titled as Financial Wellness. So, and we have HDFC Mutual Fund, who is the sponsors for the today's program, and they have given the responsibility to Mr. Krishnan Iyer, who's representing them. So, before I hand over, let me just give a brief introduction. Before I hand over the mic to Mr. Krishnan Iyer, let me give a little bit of introduction on him. He is a financial education and investment training specialist. He's got more than 22 years of extensive experience in financial education, investment training, and wellness coaching. He's devoted his career in advancing financial literacy. He is backed by SEBI's SMART certification, also a postgraduate diploma in business administration, specializing in finance, and an associate membership in Insurance Institute of India. Overall 22 years of experience, and has led more than 1,500 financial wellness programs and investor awareness programs. Since July 2017, he's been spearheading very impactful financial literacy programs for students, corporations, and community groups. He has collaborated with Institute of Chartered Accountants, Life Insurance Corporation, Birla Sun Life, leading banks, and many other asset management companies. He has delivered lectures in the area of mutual fund investors, awareness, wealth management, retirement planning, women's financial empowerment, a special session designed to nurture financial independence and assurance for women. He also has certain unique training programs like stepping out of the comfort zone, building reading habits, and investment lessons from advertisements. With such rich experience, we look forward to Mr. Krishnan Iyer to enlighten us through today's session on financial wellness program. I wish to thank HDFC Mutual Fund for sponsoring today's program and helping us to hold this program. So, over to you. Before I hand over the desk, let me felicitate by handing over a small memento. I will request Mr. Tardalkar to Thank you, Dada. Thank you. Thank you. Thank you. thank you, sir. With that, over to you, Mr. Krishnan. Thank you, sir. परवानगी दिल्याबद्दल आम्हाला नाव अय्यर आहे, पण मुंबईकर म्हणून मराठीत बोलू शकतो. मराठी, गुजराती, कोंकणी, तमिळ, मल्याळम मल्टिपल भाषा बोलू शकतो मी. ओके. आणि देवाच्या कृपेने असं आहे की कारण लहानपणी इकडेच होतो, बरंच आठवणी आहे इकडचं. कपासी बिडेमध्ये इकडेच शिकलो मी, माटुंगात होतो लहानपणी गेलं, तर आनंद वाटला. ना हा प्रोग्रामचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे,
भारतात लोक चांगले पैसे वाचवतात, बरोबर. पार्लेकर जास्त वाचवतात. ओके, बरेच लोक आहे सीए, हा सीए एरिया म्हणू शकतात, ईस्ट वेस्ट दोघं सीएच आहे, सीएस आहे. आता दगड मारला की सीए मध्ये जाणार, बरोबर आहे. हा असा एरिया आहे. ओके, तर पण पैसे वाचवणं आणि गुंतवणं बरंच फरक आहे, बरोबर म्हणतोय मी. आणि कोविड नंतर आपण बघितलं बरंच लोकांचा सेव्हिंग इन्व्हेस्टमेंट गडबड घोटाळा झालेला आहे, बरोबर. आणि आयुष्य पटरीवरून सरकलेलं असं म्हणू शकतात मुंबईचा भाषा. कारण काय, कुठे ना कुठे काही चूक गडबड घोटाळा झालेला आहे. तर मनी मॅनेजमेंट हा अतिशय इम्पॉर्टंट लाईफ स्किल आहे असं समजू शकतात. अगोदर पण महत्त्वाचा होता, कोविड नंतर महत्त्व बरंच वाढलेलं आहे, बरोबर म्हणतोय मी. आणि अजून एक गोष्टी काय आहे, आजच्या दिवशी ते टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून मुंबई का भाषा में सबको जल्दी करोड़पति बनने का है. ओके, सबको जल्दी करोड़पति बनने का है. वो सिंपल विरार से वेलेपारला 10 मिनट में आने का सबको, है ना. इसको इन्वेस्टमेंट्स की भाषा में क्या बोलता है, इंट्राडे ट्रेडिंग. ओके, इंट्राडे, एफएनओ सबसे डेंजरस है, बरोबर आहे, हा ना. तो नम्र विनंती, प्रोग्राम स्टार्ट करायचा अगोदर सेबीचा डेटा काय म्हणतोय, 90% लोक जे इंट्राडे करतात, अंधेरी बोरीविली कांदिविली मलाड करत असतात, वो लोग एफडी रिटर्न भी नहीं बनाते. वो लोग एफडी रिटर्न भी नहीं बनाते, बरोबर बोल रहा हूं मैं. तो सिंपल इन्व्हेस्टमेंट्स की भाषा म्हणजे, आणि बरंच सिनियर सिटीजनचा सुद्धा 8 बाजलेला मी बघितले. ओके, कारण काय, ओके पैसे आहे, सब बेटा बेटी सब फॉरेन में सेटल हो गया है, तो चलो टाइमपास करते हैं. ओके, तर बरेच सिनियर सिटीजन आहेत, तर डिजिटल फ्रॉडपासून सावधान नेहमी मी तेच म्हणतो. OTP पासवर्ड कोणासोबत शेअर करू नका, कारण माहिती नसलं तर लिंकवर क्लिकच करू नका. ओके, ते नेहमी म्हणतो सिनियर सिटीजनचा. आणि थोडं टेक्नॉलॉजी सावी होणं गरजेचं आहे, आणि कोविडनी आपल्यालाही शिकवलेलं आहे, बरोबर म्हणतोय मी. ओके, तर म्युच्युअल फंड हा विषय आला, बरंच लोकांना भीती वाटतं. काय, म्युच्युअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रिस्क आहे. मी आदित्य बिर्ला लाईफ इन्शुरन्समध्ये 14 वर्ष कामाला होतो, तर इन्शुरन्समध्ये काम नेहमी तेच कनेक्ट करायचा प्रयत्न करतोय. आयुष्याची गॅरंटी नसतं, बरोबर म्हणतोय मी. तर जिंदगी का भरोसा नहीं रहता है, एंड अपना कंट्री में लोगों को इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे गॅरंटी चाहिए. हे अवघड आहे, बरोबर आहे. तर रिस्क आहे, रिस्क नाही घेणं जास्त रिस्की आहे. माझ्या गोष्टी कनेक्ट करायचा प्रयत्न करतो. स्पीड व्यवस्थित आहे माझं, कारण मुंबईकर फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेनमध्ये जायचं सवय असतं ना आपल्याला. ओके, तर 14 इयर्स आदित्य बिर्ला सनलाईफमध्ये होतो. स्वतःचा 8 वर्ष झालं. लॉजिक काय होतं स्टार्ट करायचं, मोबाईल सायलेंटवर ठेवलं तर बरं. 10 वर्ष अगोदर आपण सगळ्यांकडे नोकियाचा स्मार्टफोन होता, बरोबर. आजच्या दिवशी आहे काय नोकियाचा स्मार्टफोन, कारण नोकिया कंपनीनी सॉफ्टवेअर अपग्रेड केलं नाही स्वतःला. ओके, अँड्रॉइड सोबत जोडलं नाही आणि कंपनीचं अस्तित्वच संपून गेलं, बरोबर म्हणतोय. आणि अवघड परत तेच टॉपिकवर येतोय. ज्यांनी अँड्रॉइड बनवलं होतं सर्वप्रथम, हा अँड्रॉइडचा आयडिया कोणाला दिलेलं, नोकिया कंपनीकडेच घेऊन गेलेलं. पण नोकियाला काय वाटलं, आपण काय को खर्चा करणे का, सिंपल. देवर इन कम्फर्ट झोन, अँड आयुष्यात कम्फर्ट झोन डेंजर झोन असतं. ओके, अजून एक गोष्टी, 10 वर्ष अगोदर मी पण आदित्य बिर्लामध्ये होतो, माझ्याकडे सुद्धा ब्लॅकबेरी होता. आणि 10 वर्ष अगोदर ज्याच्याकडे ब्लॅकबेरी होता उसका आकड आईफोन से ज़्यादा था, क्योंकि ब्लॅकबेरीमध्ये सर्वप्रथम क्वार्टी कीपॅड आला, ब्लॅकबेरी मेसेंजर, कॉर्पोरेट मेल, अकल्पनीय फीचर्स होते. आजच्या दिवशी ते नॉर्मल झालेलं आहे. 10 वर्ष अगोदर हे होते. पण ब्लॅकबेरी सोबत काय झालं, अँड्रॉइड आला, व्हॉट्सअप आला, आणि 3 वर्षात धंद्याला पण ताला झालं. तर मला पण तसंच वाटलं, अरे यार आपण जिंदगी में रिस्क नहीं लेगा, ओके, तो अपन भी ऐसा ही कुछ हो जाएगा. फिर थोडा तेव्हा सिंगम पिक्चर आलेला, ते सिंगम पिक्चर बितून माझा आणि बॉस सोबत तू मैमे झालं. देन आता माझी सटकली झालं. ओके, तर मी प्लॅनिंग केलं आणि 6 महिन्यात स्वतःचा स्टार्ट केलं. ओके, नंतर कोविड आला, तो वेगळा विषय, लाईफ आयुष्य मागे पुढे गेला. ओके, तर नेहमी रिस्क घेणं महत्त्वाचं आहे. रिस्क नाही घेणं कधी कधी जास्त रिस्की होऊ शकतो. आणि ट्रेनिंग स्टार्ट करतोय 2-3 बेसिक्सनी. काही नवीन गोष्टी सुरू करायच्या अगोदर जे आपण एक्झिस्टिंग केलंय ते व्यवस्थित आहे काय बघून घ्या. कारण मी तुम्हाला, आपण विरारून चर्चगेट जाणार आहे, विरारमध्ये व्यवस्थित गाडीत बसलाय काय ते बघून घ्या. ओके, तर अक्रॉस फायनान्शियल प्रोडक्ट्स, लाईफ इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स, PF, PPF, बैंक अकाउंट, डीमॅट अकाउंट, सगळ्या ठिकाणी नॉमिनेशन बरोबर आहे याने देख लो. ओके, क्योंकि इसमें गडबड आहे तो कुटुंबाला त्रास होणार.
मी माझा एक्झाम्पल घेतो. अय्यरचं स्पेलिंग IYER आहे. आधार कार्डमध्ये आलेला AYYAR. रेक्टिफाय करायला गेलो, कृष्णन आयरे करून टाकलेलं. ओके, नंतर परत एकदा रेक्टिफाय 50 रुपये देऊन रेक्टिफाय केलं व्यवस्थित. कारण हे कन्सिस्टन्सी होणं महत्त्वाचं आहे. बरं, एग्री करणार तुम्ही. पासपोर्ट सगळ्या ठिकाणी, पासपोर्ट, पॅन कार्ड, मेन आधार पॅन कार्डमध्ये सेम नाव ठेवा, स्पेलिंग मिस्टेक नको. कारण इकडे चूक झालं तर आपल्याला नाही, कुटुंबाला त्रास होणार. नेक्स्ट इज एनी कन्सर्न क्वेरी सर्व्हिस सेल्स इश्यू म्युच्युअल फंडतर्फे असेल. प्रत्येक म्युच्युअल फंडमध्ये एक इन्व्हेस्टर रिलेशन ऑफिसर असणार. तिकडे जाऊन कंप्लेंट्स आपण रजिस्टर करू शकतो. HDFC म्युच्युअल फंडचे रिप्रेझेंटेटिव्ह इकडे आहेत, त्यांना अप्रोच करू शकतात. दुसरा कुठलाही म्युच्युअल फंड असेल किंवा तुम्हाला सॅटिस्फॅक्टरी रेस्पॉन्स नाही भेटलं तर रेग्युलेटर सेबीकडे सुद्धा आपण जाऊन कंप्लेंट्स रिझॉल्व्ह करू शकतात. अगेन सगळं रेग्युलेटर कस्टमर हितासाठीच आहे, हे माझा पर्सनल मत आहे. पण चुकीच्या ठिकाणी पैसे इन्व्हेस्ट करू नका, ते जास्त महत्त्वाचं आहे पैशाच्या बाबतीत. बरोबर म्हणतोय मी? असं मराठी बोललं तर चालेल ना? थँक्यू. तर स्टार्ट करू आपण विरारून चर्चगेट. माझ्यासोबत येतात? ओके, वेलकम टू दिस जर्नी. इन्कमपासून 3 चीज आपण करू शकतो: सेव्ह, स्पेंड, इन्व्हेस्ट. अगोदर काय करायचं? अगोदर पैसे वाचवा, उरलेले पैसे खर्च करा. आय रिपीट, अगोदर पैसे वाचवा, उरलेले पैसे खर्च करा. हा आर्थिक साक्षरताचा रूल नंबर 1 आहे. कठीण आहे, पण हे रूल जर आपण फॉलो केलं लवकरच, ओके, तर दिस इज दी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फायनान्शियल फ्रीडम. एग्री करणार? ओके. तर नंतर रूल काय आहे? सेव्हिंग बँकमध्ये जास्त पैसे ठेवायचं नाही. बरेच लोक सेव्हिंग बँकमध्ये भरपूर पैसे ठेवतात. 20-20 लाख रुपये सेव्हिंग बँकमध्ये ठेवताना बघितलं आहे मी. त्यांना काय वाटतं? सेव्हिंग बँकमध्ये पैसे आहे, पण सेव्हिंग बँकमध्ये महागाई रिटर्न्स बीट नाही करतं. बरोबर म्हणतोय? तर किती पैसे ठेवायचं? सिम्पल. किती लोक इकडे वयस्क सॅलरीड आहे? सॅलरीड एम्प्लॉईज किती आहे तिकडे? ओके, सर आहे. ओके, तुम्ही पण. 3 महिन्याचा खर्च 50,000 रुपये जर खर्च असला एका महिन्याचा, तर 1.5 लाखहून जास्त सेव्हिंग बँकमध्ये ठेवायची गरज नाही. उरलेले पैसे इन्व्हेस्ट करा, तिकडे थोडं जास्त रिटर्न भेटेल. किती लोक बिझनेसमॅन आहे, व्यापारी आहे? तर 6 महिन्याचा खर्च ठेवा. कारण काय? बिझनेसमॅनना, व्यापारी लोकांना थोडा जास्त पैसे, कारण व्यापारी लोकांचा इन्कम पण व्हॉलेटाईल असतो, स्टॉक मार्केट सारखंच असतं. बरोबर म्हणतोय मी? तर एमर्जन्सी फंड थोडं जास्त ठेवणं महत्त्वाचं आहे. आणि उरलेले पैसे अशा ठिकाणी सेव्ह करा जिकडे आपल्याला जास्त रिटर्न भेटेल. पुढे जाऊ मी. नेक्स्ट, उरलेल्या पैशासोबत फायनान्शियल प्लॅनिंग हा अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. परत एकदा म्हणतोय, फायनान्शियल प्लॅनिंग अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. सर, आपलं नाव? नरेंद्र प्रभू. प्रश्न विचारला तर चालेल? सर, तुम्हाला काय वाटतं, फायनान्शियल प्लॅनिंगमध्ये पैशाचं जास्त महत्त्व आहे की प्लॅनिंगचं जास्त महत्त्व आहे? प्लॅनिंगचं जास्त महत्त्व आहे. परत एकदा म्हणतो, फायनान्शियल प्लॅनिंगमध्ये प्लॅनिंगचं जास्त महत्त्व आहे. पण बरंच लोकांना काय वाटतं, फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़्यादा पैसा लगेगा, इसके लिए बहुत लोग प्लानिंग करते ही नहीं अपने कंट्री में, स्पेशली यंगस्टर्स या जो मिडिल क्लास रहता है 30-45 जिसके बच्चे लोग हैं, वो लोग प्लानिंग नहीं करते बिकॉज उनको डर लगता है. त्यांना भीती वाटतं. काय भीती वाटतं? फायनान्शियल प्लानिंगमध्ये ज़्यादा पैसा लगेगा, इसके लिए प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं. एम आई राइट इन सेइंग दिस? एग्री करतात? एंड कुछ लोग 2 कदम आगे रहता है. ओके, स्कूल फ्रेंड आहे, IIT येऊन शिकलेला आहे. ओके, तो स्वतःचा पैसे मॅनेज करू शकतो, पण तो स्वतःचा पैसा मॅनेज नाही करणार. कोणाला पैशाचा मॅनेज करायला? पप्पा मॅनेज करणार. कारण काय? मिस्टेक झालं तर कोण जबाबदार? पप्पा. ओके, तर नम्र विनंती, प्लानिंग महत्त्वाचं आहे. एग्जाम में अच्छा मार्क चाहिए तो क्या जरूरी है? प्लानिंग जरूरी आहे. हेल्दी राहायचं तर प्लानिंग महत्त्वाचं आहे. पैशाच्या बाबतीत सुद्धा प्लानिंग महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट, दिस इज दी मोस्ट इम्पॉर्टंट स्लाइड. फोटो काढू शकतात पाहिजे तर. एका इन्कमनी कुटुंब चालणं कठीण आहे. परत एकदा म्हणतो, एका इन्कमनी कुटुंब चालणं कठीण आहे. डिस्क्लेमर, एस्पेशली आफ्टर कोविड. कारण कोविड नंतर बघितलं, सॅलरीड एम्प्लॉईजचा सॅलरी कटिंग, जॉब लॉस न्यू नॉर्मल आहे. बरोबर म्हणतोय? जसं स्टार्टिंगमध्ये सांगितलं, आयुष्य पटरीवर आलेला नाही आहे बरंच लोकांचं. कारण काय? इकडे कुठे ना कुठे काही चूक केलेलं आहे. बरोबर म्हणतोय मी? आणि गव्हर्नमेंटमध्ये असलं तर काही बिझनेस प्रेशर, काही ना काही त्रास वाढत असणार. बरोबर? हां, एग्री करतात माझ्यासोबत? तर एका इन्कमनी कुटुंब चालणं, पॅसिव्ह इन्कम, काही ना काही तो वेगळा प्रोग्राम घेतो, कम्फर्ट झोन, पुस्तकं वाचून,
ओके, तो वेगळा प्रोग्राम आहे, पण हा प्रोग्राममध्ये आपण शिकणार स्मार्ट मनी मॅनेजमेंट करून फायनान्शियली फ्री कसं व्हायचं, त्याच्यावर कोर प्रोग्राम आहे. पुढे जाऊ मी. नेक्स्ट लेट अस हॅव एन इंटरॅक्टिव्ह सेशन. दादा काका आपलं नाव? गुरुदत्त. प्रश्न विचारला तर चालेल ना? तुम्हाला काय वाटतं भारतात लोक जास्त पैसे कुठे गुंतवतात? सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी? गोल्ड अँड प्रॉपर्टी. एनी आयडिया भारतात किती सोनं आहे? नाही ना, 800 टन पार्लामध्ये असणार सर. असं आहे. अंधेरी सांताक्रूज जोडलं तर दुप्पट होऊन जाणार, कोंकण जोडलं तर अजून. हां, 25,000 टन आहे. 25,000 टन आहे, म्हणून म्हटलो 800 टन फक्त पार्ला येते. वेस्ट जोडलं तर अजून जास्त असणार. ओके, तर नाव जगाचा 12% सोना भारतात आहे आणि भारताचा 30% सोना कुठे आहे? नाही, भारताचा 2 स्टेटचा बॉर्डरमध्ये, 2 स्टेटमध्ये बटलेला आहे. हा 2 स्टेट कुठला आहे? तमिळनाडू आणि केरळ. तमिळनाडू आणि केरळमध्ये भारताचा 30% गोल्ड डिस्ट्रीब्युटेड आहे आणि अय्यर लोकांचा गाव दोघांचा बॉर्डरमध्ये असतं. ते म्हणून तमिळ मल्याळम सगळं बोलू शकतो, पण आजोबा 100 वर्ष अगोदर माटुंगाला आले तर आम्ही झालो मुंबईकर. सिम्पल स्टोरी. ओके, नाव 30% गोल्ड. आपला पार्लामध्ये खाऊ गल्ली भरपूर फेमस आहे ना, तिकडे सोनाचा गल्ली आहे. मलबार गोल्ड, गोल्डच गोल्ड आहे तिकडे. साऊथमध्ये असं प्रथा आहे, मुलगी 60 किलोची जर असली, लग्नात जास्त तोला नाही, फक्त 60 तोला सोना द्यायचं. सिम्पल. 75 किलोची असली तर मुलगी डायटिंग करणार. ओके, कारण काय, 1,10,000 गुणी 70 किती? ओके, नंतर मंगल कार्यालयामध्ये लग्न करायचं, 800 लोक येणार, जास्त नाही. ओके, चिकन मटनचं अरेंजमेंट केलं तर बरं. आणि जावई बाबूसाठी 40 लाखाची गाडी. सिम्पल, जास्त नाही, 2 कोटी खर्च लग्नात. नंतर 2 वर्ष नंतर काय विचारायचं, अरे घर खरेदी करायचं आहे, 40 लाख भेटेल काय? एवढा खर्च कशाला करायचा? बरोबर म्हणते. पैशाच्या बाबतीत प्रॅक्टिकल असणं महत्त्वाचं आहे, पण आपण काय करतात, इमोशनल होतात. बरोबर म्हणतोय मी? हो. तर सोनं आहे, भरपूर सोनं आहे. किती ते समजून घेऊ आपण. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीला सुद्धा आपण इन्व्हेस्टमेंट समजतोय, पण प्रॉपर्टी असा आहे, ॲक्युरेट डेटा प्रॉपर्टी संबंधी खूप खूप कठीण आहे. माटुंगा माझा बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंटमध्ये लोकांना 50,000 पाहिजे पर स्क्वेअर फीट. खरेदी करताना 35,000 देणार ते लोक. अवघड आहे. ओके, पार्लामध्ये पण तसंच असणार. बरोबर आहे. आपला प्रॉपर्टी चांगला आहे, समोरचा घाणेरडा आहे. तर एफ डीमध्ये बघितलं अंदाजा 300 लाख कोटी आहे. काका आपलं नाव? सुहास पोद्दार. सुहास पोद्दार. भारतात सगळ्यात मोठा बँक कुठला असणार? स्टेट बँक. 20% एफ डी इज इन स्टेट बँक. हे बघितलं. LICमध्ये भरपूर पैसे गुंतवलेले आहे आपण. LICमध्ये बघितलं अंदाजा 65 लाख करोड रुपीज आहे. म्युच्युअल फंड्स आजच्या दिवशी 74 लाख करोड रुपीज म्युच्युअल फंड्समध्ये आहे. नाव हे सोडून बघितलं सॅलरीड एम्प्लॉईजसाठी बेस्ट एफ डी आयुष्यात एकच असतं, याला मी प्रॉव्हिडंट फंड म्हणतो. आय रिपीट परत एकदा, दी बेस्ट एफ डी फॉर सॅलरीड पर्सन इज प्रॉव्हिडंट फंड. एग्री करतात? किती रिटर्न? 8.25% रिटर्न भेटतं. बरंच कंपनीमध्ये VPFचं ऑप्शन असतं. म्हणजे काय, एम्प्लॉई पाहिजे तर आपला कॉन्ट्रीब्युशन दुप्पट करू शकतो, असलं तर करून घ्या. वाय? बिकॉज सॅलरी येऊन डिडक्ट होतं आहे तुमचा ऑटोमॅटिकली. वी आर मोर डिसिप्लिन्ड इन अवर अप्रोच टू मनी मॅनेजमेंट. मी आदित्य बिर्ला ग्रुपमध्ये 14 वर्ष होतो. 14 पैकी अप्रॉक्सिमेटली 11-12 वर्ष दुप्पट केलेलं. सिम्पलेस्ट सेव्हिंग इज प्रॉव्हिडंट फंड. एग्री करतात? बरंच कंपनीमध्ये आजच्या दिवशी हा NPS झालेला आहे. NPS पण प्रॉव्हिडंट फंड सारखाच आहे, पण NPSमध्ये गॅरंटी नाही आहे. NPS असं समजू शकतात एका प्रकारचा म्युच्युअल फंड आहे. दोघांमध्ये प्लस पॉईंट आहे. नंतर प्रश्न आला तर विचारू शकतात विच इज बेटर. दोघांचा प्लस मायनस ओके पॉईंट आहे. नेक्स्ट, व्यापारी लोक. आता मी बिझनेसमॅन आहे तर प्रॉव्हिडंट फंड पॉसिबल नाही आहे. प्रॉव्हिडंट फंडचा लहान भाऊ काय म्हणतात? PPF. किती पैसे इन्व्हेस्ट करायचं? 1.5 लाख इन्व्हेस्ट करू शकतो. कधी इन्व्हेस्ट करायचं? 5 एप्रिलचा अगोदर. ओके, 5 एप्रिलचा अगोदर इन्व्हेस्ट करायचं. कारण काय, फुल वर्षाचं रिटर्न भेटतं. किती रिटर्न? अंदाजा 60% रिटर्न आहे. ओके, करताय ना आपण? पप्पांनी सांगितलं करायचं 5 एप्रिलचा अगोदर. सिम्पल.
ओके. नेक्स्ट, किती लोकांना नाती असली, पोरगी असली 10 वर्षांखाली तर गव्हर्नमेंटचा चांगला स्कीम आहे. कुठलं? सुकन्या समृद्धी. किती रिटर्न? 8% रिटर्न, 1.5 लाख पर्यंत इन्व्हेस्ट करू शकतो. किती लोकांना नातू आहे, मुलगा आहे? तर निर्मला मॅडम भेटलं तर प्रश्न विचारा काका, कारण आम्ही काय पाप केलं मी पण विचारणार काही. कारण 15 वर्षानंतर माझा मुलगाचा लग्नामध्ये होंड्या द्यावा लागेल. कलयुगमध्ये राहतोय आपण. मुलगीवाले बोलणार 12 वाजता मीटिंग केलेलं आहे, BMW देणार. तुम्ही ऑडी दिलं तर आपण मीटिंग करू बँक्वेट हॉलमध्ये. कलयुगात राहतोय आपण. ओके. आणि हे सोडून बघितलं तर पोस्टमध्ये, किसान विकास पत्रमध्ये, नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेटमध्ये बहुत पैसा है इंडियंस का. पार्ले वाले लोग का बहुत पैसा रहेगा. डेटा नहीं है लेकिन बहुत पैसा है. ओके. अभी लास्ट 3 जो प्रोडक्ट जो मैंने बोला, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये हार्ट ऑफ इंडियन सेविंग है. एफडी का छोटा भाई है. काम एफडी का ही करता है, नाम अलग है. एग्री करते हो? आगे बढ़ने से पहले सब इंडियंस के लिए जोरदार ताली हो जाता है, बिकॉज जितना पैसा हम बचाते हैं उतना कोई नहीं बचाता है. पार्ले वाले लोग ज्यादा बचाते हैं, रिटर्न मारते हैं अंधेरी में. ओके. जोरदार ताली प्लीज. नाउ कम्स मनी मॅनेजमेंटमध्ये. पुढचा 8-10 मिनिट लक्ष द्या. मनी मॅनेजमेंट आणि थाली कनेक्ट करायचा प्रयत्न करतोय मी. लक्ष द्या. नाव प्रॅक्टिकल बघितलं, हा थालीचा खर्च वाढलेला आहे. घरचा राशन, आलू, ब्याज, टमाटर सब महंगा हो गया. मी माझा एक्झाम्पल घेतोय. मुंबईकर होतो, माटुंगा बावदाजी रोडमध्ये राहायचं. नंतर नवी मुंबईत गेलो मी, जर 15-20 वर्ष होतो. आता कोविड नंतर माझं जग बदललं. कसं बदललं? ऑनलाईन झूम आलं. बायको पुणेकर आहे, मी झालो पुणेकर. ओके. कारण मी कुठूनही काम करू शकतो. व्यापारी आहे, बायकोला जॉब भेटलं तर मी झालो पुण्यात राहतो. मी 2.5-3 वर्ष झालं पुण्यात राहतो मी. ओके. पण स्टोरी असा आहे की पुणे खूप महागाई, एक्सपेन्सिव्ह सिटी आहे. माझा मुलगा पिंपले सौदागर विबज्युअरमध्ये शिकतोय. ओके. एकदम हायफाय एरिया आहे, फुल हायफाय एरिया आहे तो. 6 स्टँडर्डमध्ये त्याचा स्कूलचा फीस होता 1.5 लाख रुपया. किती? ते हार्ट अटैक आ जाएगा. ओके. 7 स्टँडर्ड में गया, स्कूल का फीस हो गया 1,80,000 रुपीज ओनली. स्कूल बस ओनली स्कूल बस जोडलं तर किती? 2.25 लाखपर्यंत जाणार. किती? माझ्या हिशोबाने माझे आई बाबांनी माझा फक्त MBA मध्ये 2 लाख रुपये खर्च केलेले बस. मी 1 वर्षात 2 लाख रुपये खर्च करतो. 5th स्टँडर्ड 5th मध्ये 5 रुपये में पढ़ा था, 6th स्टैंडर्ड 6 रुपये में पढ़ा था. हाँ ना? आज के दिन में 1 साल का खर्चा कितना है? एम आई राइट? जस्ट महंगाई डेंजर है. एजुकेशन इन्फ्लेशन एंड मेडिकल इन्फ्लेशन आर ऑलवेज हायर. एग्री करते हो? बट चैलेंज क्या है? कन्वेंशनल प्रोडक्ट जो प्रोविडेंट फंड, PF, PPF, FD में इंटरेस्ट रेट्स कम होते जा रहा है. हमारे कंट्री में आप तुम्ही एग्री करणार, 15-20 वर्ष अगोदर प्रॉव्हिडंट फंड PF, PPF मध्ये इंटरेस्टवर 12% जवळपास होता कॅरियर मी स्टार्ट करताना. आजच्या दिवशी किती आहे आपण डिस्कस केलो आहे. आणि हे जर अडचण झालं, आणि दुसरं अडचण काय, आजच्या दिवशी कॉर्पोरेटमध्ये पगार एवढा वाढणार नाही. ओके. जेवढा GDP ग्रोथ आहे त्याचा जवळपासच प्रॅक्टिकल सॅलरी असणार. ते किती सगळ्यांना माहिती आहे, बरोबर. आणि हे गडबड होता है तो इंडियन लोग शॉर्टकट लगाता है पैसा कमाने के पीछे. एग्री करते हो? एंड शॉर्टेस्ट शॉर्टकट क्या है? इंट्राडे. एम आई राइट? शॉर्टेस्ट शॉर्टकट अपना कंट्री में क्या है? इंट्राडे. बट बरोबरच लोकांना स्कूलची फ्रेंड आहे पद्मदा कदम म्हणून, तिला म्युच्युअल फंड्स भीती वाटतं. पण महाराष्ट्र का वर्ल्ड फेमस स्कीम आहे BC मध्ये पैसे गुंतवताना पद्मनाथ ताई सोरकाला अजिबात भीती वाटत नाही. 8 लाख रुपये बुडलं. किती पैसे बुडलं? 8 लाख रुपये बुडलं एक BC मध्ये. तरी सुद्धा दुसऱ्या BC मध्ये पैसे टाकलं, 4 लाख बुडलं. पण म्युच्युअल फंड नको रे यार, भीती वाटतं. वो माइंडसेट आहे. आणि पैसे एका बाबतीत अशा आहे, ओळखीचा माणूस जास्त धोका देतो. एम आय राईट? तर मी लास्ट 8 वर्ष झालं असं सामाजिक कार्यासोबत जुडताना मला पण आनंद वाटतं. दर महिन्याला मी ॲव्हरेज 20-22-25 प्रोग्राम घेत असतो. काल रात्री नाशिकहून आलो. नाशिकमध्ये डेंजर स्कीम ऐकायचं आहे. नाशिकमध्ये शिर्डीमध्ये असं स्कीम में 400 करोड़ लपड़ा पकड़ लिया. दर महीना 12% रिटर्न. लोग डाल रहे पैसा. ये स्कीम उनको सेफ लगता है, म्यूचुअल फंड रिस्की लगता है. वेलकम टू इंडिया. एग्री करते हो? असं स्कीममध्ये इन्व्हेस्ट करताना त्यांना अजिबात भीती वाटत नाही. म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करायचा अगोदर भीती वाटतं पद्मजा कदम सारखं लोकांना. क्यों? म्युच्युअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क.
12% रिटर्न पर मंथ अडानी अंबानी भी अपने कंट्री में नहीं कमाता रहेगा, एग्री करेंगे? हाँ ना, बट लोगों ने 400 करोड़ ऑफिशियल फिगर आया है। आणि जो स्कीम चला रहा था उसका कंप्लेंट ऊपर गया तो अटक करने के लिए पुलिस कर्मचारी आया 4, वो इतना लबाड़ था, पुलिस 3 पुलिस वाले को 1.5 करोड़ रुपया दे दिए। ओके, क्राइम पेट्रोल वाला दिमाग था उसका। ओके, फिर बाद में ऊपर और कंप्लेंट किया तब उसका अटक हुआ। ओके, वाय आय एम सेइंग दिस, मनी मॅनेजमेंट मध्ये नंबर 1 रूल काय आहे, चुकीच्या ठिकाणी पैसे इन्वेस्ट करू नका। ये महीने का 4% स्कीम, महीने का 5% स्कीम सबसे डेंजर होता है अपने कंट्री में, एंड बहुत लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करता है। एम आय राईट? सीए लोकांचा 20-30 लाख रुपये बुडताना मी बघितलं असं स्कीममध्ये। आणि सगळ्यात डेंजर यहाँ पे वयस्कर लोक खूप आहे, तर डोंट प्लीज टेक इट पॉझिटिव्हली। तुमचा मुलगा जर 22-25 वर्षाचा असेल, नातू नाती तो वयाचा असेल, त्यांचा स्मार्टफोन चेक करा, कारण ये जो यंग जनरेशन है वो इंट्राडे एफएनओ से भी ज़्यादा डेंजर प्रोडक्ट में पैसा लगाता है, इसको क्रिप्टो बिटकॉइन बोलता है। एम आई राइट इन सेइंग दिस? ये जो यंग जनरेशन है उनका दिमाग अलग लेवल पर है, सबसे डेंजरस प्रोडक्ट है क्रिप्टो बिटकॉइन। लेट मी एक्नॉलेज, मी एक्सपर्ट नहीं है वो फील्ड का, बट रेगुलेटर नहीं है तो काय को इन्वेस्ट करने का, दैट इज माई सिंपल लॉजिक। एग्री करते हो? हा ना, तर प्लीज प्लीज उनका सीएचा 2 कोटी रुपये क्रिप्टोमध्ये हात भाजलेला मी बघितलं, सगळ्यात डेंजर। चूक त्याचा पण नाही, 23 ईयर्समध्ये वो सीए हो गया, कितना एज में चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। सो कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत डेंजर है। तो उसको क्या लगा, मेरे को तो सब आता है अभी, खत्म, विनाशकाले विपरीत बुद्धी, 2 करोड़ रुपया क्रिप्टो में डूब गया उसका। ओके, तो मनी मॅनेजमेंट परत एकदा बोलतोय, मनी मॅनेजमेंटचा नंबर 1 रूल काय, चुकीच्या ठिकाणी पैसे इन्व्हेस्ट करा नका। कुठलाही स्कीम स्टेट बँक एफडी पेक्षा जास्त रिटर्न देत असेल तर काही ना काही रिस्क आहे, नेहमी हेच म्हणतो, बरोबर? आय एम राईट इन सेइंग दिस? तर नेक्स्ट, मनी मॅनेजमेंटमध्ये असं हे जर समजलं तर आयुष्य सोपं आहे, एग्री करणार? अँड बिहेवियरच्या बाबतीत 2-3 पुस्तकं नेहमी वाचा। सायकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल वाचण्यायोग्य पुस्तक आहे। नेक्स्ट, मॉर्गन हसलनी याचा पार्ट 2 पण लिहिलेला आहे, सेम एस एव्हर, चांगलं पुस्तक आहे। रिच डॅड पुअर डॅड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, जगप्रसिद्ध लेखक आहे, आपण चांगला पुस्तक आहे। नेक्स्ट, बिहेवियर फायनान्स अँड व्हॅल्यू इन्व्हेस्टिंग बाय पराग पारेख, वाचण्यायोग्य पुस्तक आहे। मराठीमध्ये एक पुस्तक आहे, गोष्ट पैशाची बाय प्रकाश वानकडे, आपण ऐकलं आहे, चांगलं पुस्तक आहे, मी वाचलेलं नाही आहे। ओके, चांगलं पुस्तक आहे, ओके ग्रेट, मी वाचलेलं नाही, माझ्या रीडिंग कार्टमध्ये आहे, असं ऐकलं आहे की चांगलं पुस्तक आहे, तर ग्रेट 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 ग्रेट, कीप अटेंडिंग, कारण सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है, हम आदमी खुद पे करता है। एम आई राइट इन सेइंग दिस? ओके, नेक्स्ट, मनी मॅनेजमेंटमध्ये ॲसेट ॲलोकेशन महत्त्वाचं आहे। ॲसेट ॲलोकेशन म्हणजे काय, कोविड नंतर बघितलं, इम्युनिटी काय बरंच लोकांना माहिती आहे, प्रोटीन, कार्बोहायड्रेट्स, विटॅमिन, न्यूट्रिन सगळ्यांचा टीम बनवून चालणं, इम्युनिटी, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढतं, बरोबर आहे? आणि इंडियन्स आपण डाएट जर बघितलं, वी आर ओव्हरलोडेड विथ कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन कमी आहे, प्रॅक्टिकल आहे। ओके, तर मनी मॅनेजमेंटमध्ये सुद्धा विनिंग फॉर्म्युला काय आहे, भारतात लोकांचा इन्व्हेस्टमेंटचा थाली जर आपण बघितलं, 2 प्रोडक्टमध्ये जास्त पैसे आहे, कुठला 2 प्रोडक्ट, एफडी आणि गोल्ड। एफडी गोल्ड में बहुत पैसा है इंडियन का, एंड जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा आता है वो किधर पैसा लगा देता है, रियल एस्टेट, जास्त डोक्या लावत नाही आपण, सिंपल। ओके, जिसके पास पैसा आता है वो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी ले लेता है, सिंपल। ओके, नाउ कम्स सिंपल, लेट्स बिगिन विथ गोल्ड। ये थाली में किती सोनं असणं महत्त्वाचं आहे। 100 रुपये जर आपण गुंतवतो, जेवढा टेचा कोशिंबीर घेतो तेवढा सोनं घेतलं तर मोर देन इनफ आहे, मतलब सिंपल 100 पैकी 10-15 सोनामध्ये गुंतवलं तर मोर देन इनफ आहे। पण ॲव्हरेज इंडियनचा मेन कोर्स सोनं आहे। ओके, याचं कारण काय, मी म्हणतो सोनं जास्त खरेदी करू नका, सोनं खरेदी करताना 22 कॅरेट देतो आपण, विकताना तो रेट कधी भेटत नाही। आम आय राईट? आम आय राईट? आणि लेडीज लोकांचा फेमस स्कीम असतं, 2000 रुपये 11 महिन्यासाठी टाकायचं, नंतर काय होतं सगळ्यांना माहिती आहे। आणि मेकिंग मजुरीवर डिस्काउंट पाहिजेच पाहिजे त्यांना, जसा बेलपुरी रगडापुरी खाल्यानंतर सुकापुरी पाहिजे, त्यांना मेकिंग मजुरीवर डिस्काउंट पाहिजेच पाहिजे, ते ह्युमन मेंटॅलिटी आहे। ओके, आणि माझी बायको एकदम डेंजर आहे, असं पिंपले सौदागर चालताना 10 दिवस अगोदर, आता सोनं लई वाढलेलं आहे, तर ते ज्वेलर्स काय करतात, मजुरीवर डिस्काउंट, मजुरीवर 30% डिस्काउंट। माझी बायको लगेच कॉल केली तिच्या ताईला, ओके काय इकडे ये, सोनं खरेदी करू आपण, कारण काय मजुरीवर 20% डिस्काउंट आहे। ओके, वो माइंडसेट है इंडियंस का।
तर अजून सिंपल रिझन, टेक्निकल रिझन इज लास्ट 20 इयर्समध्ये बघितलं सोनंनी चांगलं रिटर्न दिलेलं आहे, पण मेन कारण काय आहे, 20 इयर्समध्ये रुपी डेप्रिशिएट झालेला आहे. काही टाईम अगोदर 35 रुपीज होता, आजच्या दिवशी $1 खरेदी करण्यासाठी 90 रुपये द्यायचे. तर व्हॉट हॅपन्स बिकॉज ऑफ दिस इज गोल्ड प्राइस इन्फ्लेट्स. गोल्ड प्राइस, विघ्नेश मेरा फोन बंद करो. ओके, तर मेजर पोर्शन ऑफ दिस रिटर्न, 2/3 रिटर्न इन गोल्ड हैज कम बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिशिएशन अगेन्स्ट द डॉलर. ओके, डॉलर जर 100 झाला तर गोल्डचा प्राइस अजून वाढेल. क्लिअर. नेक्स्ट, म्हणून थालीमध्ये सोनं महत्वाचं आहे, पण माध्यम डिजिटल करून टाका. माध्यम डिजिटल करून टाका. इससे भी अच्छा एक ऑप्शन था गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, विच वॉज दॅट सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड. अतिउत्तम खरं सोना म्हणू शकतं, कारण काय 2.5% रिटर्न अँड मॅच्युरिटी टॅक्स फ्री. तर बेस्ट इन्व्हेस्टमेंट वॉज सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड. आता बंद आहे तर डिस्कस करणं नॉट राईट, तर डिजिटल करून टाका. आणि थालीमध्ये किती सोना, 100 पैकी 10 ते 15 मोर देन इनफ आहे. नेक्स्ट, हा थालीमध्ये काही पैसे इक्विटीमध्ये सुद्धा इन्व्हेस्ट करणं महत्त्वाचं आहे. सिंपल एक्झाम्पल, इक्विटी म्हणजे काय, इक्विटी म्हणजे काय, एक सिंपल उदाहरण घेऊन चालतो. आता मी पिंपरीत राहतो, पिंपरी गावात राहतो, आणि पिंपरी म्हणजे काय, ब्रेकफास्ट लंच डिनर एकच आहे, मिसल. गोडके मिसल, अतिथी मिसल, निसर्ग मिसल, मिसलच मिसल है तिकडे. ओके, ब्रेकफास्ट लंच डिनर पिंपरी पुणे में एक ही रहता है क्या, जैसा मुंबई में वड़ा पाव है उधर मिसल है. अभी सैटरडे संडे मतलब मारामारी होता है, क्यों, स्टॉक जल्दी खत्म हो जाता है. दत्तगुरु, निसर्ग मिसल. अभी लेटेस्ट टेक एन एग्जाम्पल, प्रभू सर, राइट. प्रभू सर को दत्तगुरु मिसल का पार्लामध्ये फ्रँचायझी घ्यायचं आहे, टनाटन बिझनेस आहे. तर हे काय झालं, इक्विटीचा एक्झाम्पल झाला. प्रभू सर पिंपरीचा सुप्रसिद्ध मिसलचा फ्रँचायझी पार्लामध्ये घेतात. तर माल कोण सप्लाय करणार, दत्तगुरु मिसल. प्लॅनिंग, ब्रँडिंग त्यांचा असेल, जागा कोणचा असेल, प्रभू सर का. आर यू क्लियर. और प्रभु सर और गुरुदत्त सर बोलते हैं ये दोनों बिजनेस में पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हैं. 60% प्रॉफिट इनका, 40% इनका. ये क्या हुआ, इक्विटी हुआ. आर यू क्लियर विद दिस. सिंपल. नाउ इक्विटी मतलब रिटर्न्स गारंटी रहेगा क्या, रिटर्न्स गारंटी रहेगा नहीं. अभी एक दिन में कितना मिसल सेल होगा बोल नहीं सकते, बरोबर है. अभी लॉन्ग वीकेंड मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बरोबर है. बिकॉज आज के दिन में लॉन्ग वीकेंड मतलब लोग लोकल ट्रेन से ज़्यादा गर्दी एयरपोर्ट में हो जाता है. ओके, ये नया भारत है, बरोबर बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ना. पार्ला स्टेशन से ज़्यादा गर्दी एयरपोर्ट में हो जाता है. ये लॉन्ग वीकेंड है, नया भारत है ये. आज से 30 साल पहले वेकेशन मतलब एक ही था, समर वेकेशन. अभी एवरी लॉन्ग वीकेंड इज अ वेकेशन. एग्री करते हो, ये नया भारत है, ट्रेंड है. ओके, सो दैट इज इक्विटी. आर यू क्लियर विद दिस. मेरा बिजनेस में कोई शार्क टैंक पैसा डाल रहा है 10 करोड़ रुपया, तो ये क्या हुआ, इक्विटी हुआ. डिस्क्लेमर किसी ने डाला नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए. आर यू क्लियर विथ दिस. नाउ इक्विटी म्हणजे एका व्यवसायासोबत जोडणं. नाउ सिंपल पॉईंट, एका व्यवसायासोबत जोडताना रिटर्नची गॅरंटी असणार काय, अशक्य आहे. ओके, नाउ सिंपल पॉइंट, आज के दिन में बहुत सारा स्टॉक मार्केट, इन्फ्लुएंसर, वो सब स्कीम चलाते रहता है. हमारा कम्युनिटी जुड़ो, महीने का 4% रिटर्न मिलेगा. एम आई राइट. हमारा कम्युनिटी जुड़ो, महीने का 5% रिटर्न मिलेगा. बोलता है नहीं बोलता, बरोबर है नहीं है, तो वो फंसा रहा है. सिंपल, सावधान रहने का, बिकॉज हमारा मेहनत का पैसा है. शेयर खरीदना सबसे आसान तरीका है. द ईजिएस्ट थिंग इज बाइंग अ शेयर. डीमैट अकाउंट उघडणं सोपं आहे. ओके, 20 मिनट्स में एक ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट हो सकता है. लेकिन इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस उतना ईजी नहीं है. इन्वेस्टमेंट करायचा अगोदर तो कंपनीच्या कुंडली बघणं महत्त्वाचं आहे. बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भिड़े क्लासेस में सिखाया था मेरे को. आर यू क्लियर. पार्ला आता था मैं. ओके, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब डिटेल में पढ़ना जरूरी है. एम आई राइट. प्लस 2 कॉम्पिटिशनला सुद्धा डिटेलमध्ये डेटा एनालिसिस करना जरूरी है. एम आई राइट इन से, हाँ ना. नाउ इतना करने के बाद भी अच्छा क्रिकेटर भी जीरो में आउट हो सकता है, अच्छा हीरो का पिक्चर भी फ्लॉप हो सकता है. एम आई राइट. सो दैट इज इक्विटी. ओके, नाउ ये डेटा एनालिसिस का काम मेरे हिसाब से चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटर करता है. ओके, पार्ला में बहुत है चार्टर्ड, ईस्ट वेस्ट में दोनों सीए का ही हेडक्वार्टर्स है, मैं बोलता हूँ. ओके, नाउ इतना करने के बाद भी अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों का इसमें हाथ जलते हुए देखा है मैं. क्यों, बिकॉज बऱ्याच चार्टर्ड अकाउंटंटला क्या वाटतं की हमको सब आता है, हमको सब आता है. आई डोंट ब्लेम देम. यहाँ पे कोई सीए है? ओके, नहीं, यहाँ पे कोई है क्या? ओके, तो मेरा एक स्कूल फ्रेंड है विरल जोशी करके, बचपन का मेरा बेस्ट फ्रेंड है.
वो सिल्वर जुबली हो गया उसका सीए का, तो वो क्या बोलेगा, अरे अय्यर तुम्हारा म्यूचुअल फंड वाला सब चोर लोग हैं, सब चोर लोग हैं। क्यों चोर लोग हैं? ये कंपनी में क्या लफड़ा हो रहा है ना, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तुम्हारा फंड मैनेजर वही स्टॉक लिया है। ओके, तो एंड माई क्यू तेरा, मैं तो डायरेक्ट एफएनओ, मैं तो डायरेक्ट अंधेरी बोरीवली करता रहेगा। ओके 25-year-old चार्टर्ड अकाउंटेंट, माई गुड फ्रेंड विरल जोशी। बट कोविड के बाद बहुत पैसा बनाया विरल ने, लेकिन कोविड के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ा नहीं बढ़ा मार्केट में? क्यों बढ़ा? हां, माझे घर मध्ये काम करणे वाली मावशी सुद्धा आजच्या दिवशी ऑनलाईन मध्ये आहे, तिला सुद्धा माहिती आहे काय, अरे ती मला सांगते काय, अरे अय्यर भाऊ आजच्या दिवशी तुम्ही आदित्य बिर्ला मध्ये होते ना, तो पेंट मध्ये आलाय, 10,000 कोटी पेंट धंदा मध्ये टाकतोय, एशियन पेंट्स खाली पडणार, डेंजर इन्फॉर्मेशन आहे। बिल्डिंगचा सिक्युरिटी गार्ड तो पण झिरोडा मध्ये आहे, एम आई राइट? तो इतना लोग स्टॉक मार्केट में घुसेगा तो वॉलेटिलिटी क्या होगा, बढ़ने ही वाला है। सिंपल, लोकल ट्रेन में बहुत लोग घुस रहे हैं तो बढ़ेगा ही। तो विरल का क्या हो गया, 25 ईयर सिल्वर जुबली चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसका 3 महीने में 50 लाख रुपये लॉस हो गया। आर यू क्लियर? 3 महीने में कितना लॉस हुआ? 50 लाख रुपीज लॉस हुआ उसका एफएनओ में। तभी उसको अक्कल आया कि रिस्क पे फोकस करना जरूरी है। आर यू क्लियर? रिस्क पे फोकस करना जरूरी है। ओके, बिकॉज एंड ये काम म्यूचुअल फंड्स बेटर कर सकता है। सिंपल, ये काम म्यूचुअल फंड्स बेटर कर सकता है। क्यों कर सकता है? बिकॉज एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में देखेंगे तो 40, 60, 80 स्टॉक्स रहेगा, ज़्यादा भी रहेगा। ओके, तो 40, 60, 80 स्टॉक्स लेने का फायदा क्या है? रिस्क कम हो जाता है। एग्री करेंगे सर? एंड दूसरा, अलग अलग सेक्टर में रहेगा, आईटी, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, आर्ट, दा सेक्टर में ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा तो रिस्क कम हो गया। तो इन्वेस्टमेंट्स का नंबर 1 रूल क्या है? रिस्क को कम करो तो ऑटोमेटिकली रिटर्न आता है। इट इज लाइक इन्वेस्टमेंट टेस्ट मैच है कि T20 है? इन्वेस्टमेंट टेस्ट मैच है। आज से 30 साल पहले गावस्कर शास्त्री टुकु टुकु खेलता था, टेस्ट मैच 5 दिन चलता था। आज के दिन में 5 दिन में 2 टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। क्यों? आईपीएल का दुष्परिणाम बोला। एम आई राइट इन सेइंग दिस? क्योंकि पेशेंस ही नहीं है ना। एम आई राइट? ब्लिंकिट आना 10 मिनट में आ जाता है। तो पुणे में ऐसा सिचुएशन है, कोई मिसल का टपरी में झगड़ा क्यों होता है? सैटरडे संडे मतलब ज़्यादा झगड़ा है क्योंकि वो स्विगी जोमेटो में 10 मिनट में खाना आ जाता है। आधा घंटा रुकना पेशेंस नहीं है लोगों को। एम आई राइट? तो माल खत्म हो गया तो भांडन चालू आज भी देखा था, वीडियो आया था एक। ओके, 2 मिसल के बाद झगड़ा हो गया था, क्यों? माल खत्म। ओके, एग्री करते हो? तर म्युच्युअल फंड्स में रिस्क इज ऑलवेज प्रायोरिटाइज। एंड बरंच लोक काय करतात, और एक स्टोरी, 4 दिन पहले मेरे बिल्डिंग का व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था। क्या मैसेज आया था? ABCD कंपनी का शेयर लेने का किसी ने डाल दिया था, 40 रुपीज़ है, 80 रुपीज़ हो जाएगा। तो मेरे को 4 लोग ने मैसेज किया, अरे अय्यर सर तुमचं काय मत आहे, शेयर खरेदी करायचं नाही करायचं? मैं म्हटलं बिंदास खरीदी करो, 40 का 60 हो गया तो मेरे को पार्टी दो, 40 का 18 हो गया मेरे को गाली भी मत देना, क्योंकि तुम्हारा पैसा आहे। इन्व्हेस्टमेंट करायचा अगोदर सिलेबस वाचणं महत्त्वाचं आहे। परीक्षेत बसतात त्याचा अगोदर सिलेबस वाचणं महत्त्वाचं आहे, बरोबर म्हणते? आणि सिलेबस काय? लास्ट 5 ईयर्स का रिपोर्ट कार्ड देखना जरूरी है 2 कंपटीशन को भी डिटेल में स्टडी करना जरूरी है। ये किया, उसके बाद तुम मैदान में उतरो। ओके, कोई कर पाएगा इतना? डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। एम आई राइट? सो 90% इंडियन इन्वेस्टर्स आर अभिमन्यु इन महाभारत। अभिमन्यु क्या किया था? चक्रव्यूह के अंदर घुस गया था लेकिन बाहर नहीं आया। आर यू क्लियर? एग्री करते हो? रिटेल इन्वेस्टर यही है। सेबी का डेटा भी यही बोलता है, 90% लोग जो इंट्राडे एफएनओ करता है वो लोग एफडी रिटर्न भी नहीं कमाता है। एग्री करते हो? नहीं करते हो? हाँ ना? तो इन्व्हेस्टमेंट इज व्हेरी व्हेरी सिंपल, प्रोव्हाइडेड वी आर मोर डिसिप्लिन। 20 मिनिट झालं तुम्ही मला ऐकतात, मी सिंपल बोलतोय की कॉम्प्लिकेटेड बोलतोय? सिंपल, इन्वेस्टमेंट सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पण लोग उसको कॉम्प्लिकेट करतात तभी मजा आता है। ओके, तर $1 मिलियन क्वेश्चन, हा थालीमध्ये किती बाग इक्विटी म्यूचुअल फंड? अभी वो फंड मैनेजर का भी मिस्टेक होगा, लेकिन वो 100 रुपीज़ मैनेज कर रहा है तो 20% एक स्टॉक में नहीं लगाया है जैसा विरल ने लगाया था। ओके, विरल का 30% एक ही कंपनी में था, गया खत्म, क्योंकि उसको लगता है मेरे को सब आता है, मैं बैलेंस शीट बनाता है 4 कंपनी का। ओके, कॉन्फिडेंस अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंट डेंजर, खत्म, 50 लाख रुपया। फिर उसके बाद विरल अभी सब एफएनओ सब बंद कर दिया उसने। ओके, नाउ $1 मिलियन क्वेश्चन, हा थालीमध्ये किती सोनं घेऊन चालायचं? 100 मायनस माय एज,
माझं वय 48 आहे, तर 100 - 48 किती झालं? 52% इक्विटीमध्ये इन्व्हेस्ट करू शकतो. विच फायनान्शियल गोल? सिम्पल फायनान्शियल गोल इज 5 years प्लस. मिनिमम 5 years प्लस देणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. सिम्पल ज्युनियर अय्यर 12 वर्षाचा आहे, त्याचा शिक्षणासाठी हा एक गोल झाला. दुसरा गोल माझा आणि बायकोचा रिटायरमेंट. क्लिअर? ओके. नाव बरेच लोक काय मिस्टेक करतात? आता माझा वाढदिवस डिसेंबरमध्ये आहे, तर प्लॅनिंग चालू आहे की हा वाढदिवस गोवामध्ये सेलिब्रेट करायचं. तर पैसे आहे काय? तर वो पैसा इक्विटी में लगाओ तो क्या होगा? लक रहेगा, पैसा बनेगा, नहीं तो क्लीन बोल्ड हो जाता है अपन. एम आई राइट? तो 3 महीने के बाद पैसा चाहिए तो सिंपल सेविंग बैंक में पैसा रखो या एक डेट फंड में पैसा डाल दो. ओके, लिक्विड जो वॉट एवर मैचिंग माई रिस्क एपेटाइट, वो वहाँ पे पैसा डाल दो. एग्री करते हो? नहीं करते हो? लेकिन 3 महीने का पैसा इक्विटी में डालो तो क्या होगा? लक रहेगा तो बैट बॉल में लगेगा, नहीं तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा. आता माई यंगर ब्रदर इज 42 years ओल्ड, तो उसके थाली में कितना इक्विटी होना चाहिए? 58% इक्विटी में रख सकता है. ओके, यहाँ पे लेट अस अज्यूम सीनियर सिटीजन, सर तुमचा वय 70च्या जवळपास 60 आहे, सर 40% इक्विटीमध्ये तुम्ही ठेवू शकतात. आर यू क्लियर? ये रूल को कभी वायलेट मत करो, ये रूल को. एंड मोर इम्पॉर्टेंट है, नहीं समझ में आ रहा तो मत करो. नहीं समझ में आ रहा तो आई टेक माई अंकल्स एग्जाम्पल. माई अंकल इज 75 years ओल्ड. उनका एक स्कूल फ्रेंड है, ओके, 30 साल से 40 साल से स्टॉक मार्केट में 20 करोड़ रुपया बनाया है अंकल ने. अंकल का स्कूल फ्रेंड में उन अंकल ही है. अभी मेरा अंकल भी उसको रेप्लिकेट कर सकता है क्या? वो बोलेगा करके स्टॉक खरीदेगा तो डेंजर हो जाएगा. आई एम राइट इन सेइंग दिस? बिकॉज मेरा अंकल का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ही नहीं है, तो सिंपल रहो. एडवेंचर 75 की एज में बिल्कुल मत करो. आई एम राइट इन सेइंग दिस? उनको करने दो, उन्होंने 20 करोड़ कमाया, त्यांना माहिती आहे काय आहे. आई एम राइट इन सेइंग दिस? माहिती नसलं तर करू नका ॲडव्हेंचर, आणि ॲट दॅट एज स्पेशली. So that is important. Now there are many categories of mutual funds. Okay, 2-3 सिंपल कैटेगरीचा एग्जाम्पल देतोय. इंडिया में बिना लोन का घर लेना बहुत डिफिकल्ट है. एग्री करते हो? विदाउट लोन बाइंग अ हाउस इज वेरी 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 डिफिकल्ट. है राइट? एग्री करते हो? तो 90% पीपल जिन्होंने होम लोन लिया है वो लोग ओल्ड इनकम टैक्स में रहेगा या न्यू में रहेगा? वो लोग ओल्ड में रहेगा. बिकॉज इंडियंस है तो पैसा वसूल करने हमको अच्छा लगता है. है राइट? इंडियन पैसा थाली अनलिमिटेड खाने का. पिंपरी में मिलता है मिसल, 99 रुपीज़ अनलिमिटेड मिसल. अगला दिन पेट खराब होएगा तो भी चलता है, लेकिन पूरा पैसा वसूल करने का मेरे को. ओके, फार्मा कंपनी का धंधा बढ़ाएगा चलेगा, लेकिन पैसा वसूल करने का मेरे को. ओके, तो अगेन सीएस प्लीज करेक्ट व्हाट आई एम सेइंग. सैलरीड पर्सन ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड में अदला बदली कर सकता है. आपका फॉर्म 16 एज पर न्यू रह सकता है, फाइनल आईटीआर न्यू के हिसाब से हो सकता है. मैं राइट? बट बिजनेसमैन कैन नॉट चेंज. एक बार नया में चला गया तो वो ओल्ड में वापस नहीं आ सकता है. मैं राइट इन सेइंग दिस? ओके, तो जिस किसी का भी होम लोन है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर. ओके, नो टैक्स के मामले में सीए है, ऐसा है. आप भी सीए हो क्या? वो लग गया सर. ओके, ऐसा है. ओके, थैंक यू. ऐसा है. ओके, कितना भी सीए आओ, कितना भी आईटी आने दो, सीए का अभी एक स्टोरी बताऊं. सीए है तो मेरा बहुत सारा फ्रेंड ना आईटी में है. ओके, बहुत सारा फ्रेंड आईटी में है. तो मेरा एक फ्रेंड है जगन करके, बचपन का फ्रेंड है. 1st to 10th स्टैंडर्ड तक एक ही बेंच में बैठा हम लोग. फिर 10th स्टैंडर्ड के बाद वो कसारा लोकल पकड़ा, मैं करजत लोकल पकड़ा. उतना ही फर्क है. मतलब मैं बीकॉम लिया, वो साइंस लेके इंजीनियर बन के बड़ा बड़ा कंपनी में, अभी बहुत बड़ा कंपनी में है. तो ये फिर आईआईटी में चला गया वो. ओके, फिर उसको जगन को क्या लगता है, अरे ये जीएसटी बीएसटी का सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, हाँ ना. जीएसटी का सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? सिस्टम डाउन होता है तो हमारा टीम काम करता है ईयर. तो मैं काय को सीए को 3,000 रुपया देने का इनकम टैक्स रिटर्न के लिए. हमारा राइट? वो इंडियन माइंडसेट आता है कि नहीं? हाँ ना. तो ऐसे ही जगन ने काम किया. अभी उसका एक लिस्टेड कंपनी में काम करता है और उसका शेयर वो बेच दिया. जगन ने वो शेयर बेच दिया और फाइनल आईटीआर में वो अकाउंट करना भूल गया. वो आर यू क्लियर? विनाशकाले खत्म हो गया. लेकिन वो 26 ए सब पकड़ लिया. इनकम टैक्स वाले ने उसको नोटिस भेजा. इनकम टैक्स वाले ने नोटिस भेजा, सर तुम्हें अभी मेरे को पेनल्टी देना पड़ेगा. आर यू क्लियर? फंसा हुआ है.
3,000 रुपया बचाने के चक्कर में अभी इनकम टैक्स फंस गया। आर यू क्लियर दिस? सिंपल अभी सीए से भी ये मिस्टेक हो सकता था, बिकॉज सीए भी आदमी है, लेकिन तुम सीए को अकाउंटेबल तो कर सकता था। एम आई राइट इन सेइंग दिस? एग्री करते हो नहीं करते हो? हाँ ना? तो दैट इज वाई ऐसे कितना भी वो सब काम, माझी वहिनी चार्टर्ड अकाउंटंट आहे, ओके, वो उसका आईटीआर नहीं भरती, उसका आईटीआर भी सीए भरता है, ओके, वो भी सीए है, ऐसा है, ओके, बिकॉज खुद को ऑपरेशन कभी नहीं करने का, ओके, खुद को ऑपरेशन कभी नहीं करने का, बरोबर है। तो एडजस्टमेंट मुंबई लोगों के लिए बहुत सिंपल रहता है। एडजस्टमेंट म्हणजे जिसका होम लोन लिया है 1.25 लाख का एडजस्टमेंट बाय डिफॉल्ट हो जाता है, राइट? तर लास्ट मोमेंटमध्ये ॲडजस्टमेंट करतात लोक, काय दादा थोड़ा आतमध्ये जावा ना, तर मग ऐसा बैठेगा, समझ में आया? ये एडजस्टमेंट है। फिर ऐसा ऐसा करेगा, मैं बोलेगा अरे तुम अंदर जाओ, आना, फिर भांडन चालू। बट एक अच्छा है, कोविड के बाद अभी 90% सीट्स में 3 लोग बैठते हैं, बरोबर है। ये सबसे बड़ा माइंडसेट चेंज है, एग्री करते हो? बहुत डिफिकल्ट है हमारे कंट्री में, हाँ ना? ये एक चेंज हुआ है, और दूसरा चेंज हुआ है, सूरत में लोग ट्रैफिक सिग्नल फॉलो कर रहे हैं अभी, ओके, ये बहुत डिफिकल्ट है हमारे कंट्री में, हाँ ना? तो इन 2 शहर के लिए ताली हो जाए, ओके, विच इज वेरी डिफिकल्ट, हाँ, वेरी वेरी डिफिकल्ट। अभी 90% सीट्स में 3 लोगच बसतात, ओके। नेक्स्ट एक और चीज चेंज हो रहा है, टुडे इंडियंस आर फॉलोइंग एसेट एलोकेशन एंड पुटिंग मोर मनी इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वाया एसआईपी। एवरी मंथ 25,000 करोड़ रुपीज इक्विटी इनफ्लो इज कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है, ओके। नाउ तो बहुत लोग क्या करेंगे, या टैक्स बचाने के चक्कर में, अभी भी बहुत लोग आहे ऐसे, बरंच लोक आहे, 25,000 वाचवायचं आहे, कुठे पैसे टाकायचं? LIC पॉलिसी खरेदी करायचं, सिंपल। बरंच लोक काय सांगतात, पप्पांनी सांगितलंय 5 एप्रिलच्या अगोदर PPF मध्ये पैसे टाकायचं, सिंपल, 1.5 लाख, संपला विषय, पाहिजेच पाहिजे PPF, ओके। तो नथिंग राइट और रॉन्ग विन दिस, ऑल आर गुड, बट ॲसेट ॲलोकेशन महत्वाचं आहे। बरेच लोग आजच्या दिवशी क्या म्हणतात, अरे 15 साल काय को पैसा लगाने का, चलो शॉर्ट टर्म बैंक FD 5-5 साल का रोलिंग करते रहते हैं, नथिंग राइट और रॉन्ग इन दिस, ओके, बट एसेट एलोकेशन वेल्थ क्रिएशन हुआ नहीं है। तो म्युच्युअल फंड में एक कैटेगरी आहे, इसको ELSS बोला जाता है। याचा फायदा काय, टॅक्स सोबत आपण वेल्थ सुद्धा क्रिएट करू शकतात। डेटा काय म्हणतोय, वर्ष परफॉर्मिंग सिप 15 वर्ष SIP टिकवलं, विरारून अंधेरीपर्यंत बँड्रापर्यंत, खराब SIPनी 15 वर्ष SIP टिकवलं तर 11.5-12% रिटर्न है, सिंपल। कितना रिटर्न है खराब फंड ने दिया? विरार से लेके बैंड्रा तक हर स्टेशन में SIP किया है, तो खराब सिर्फ 11.5-12% रिटर्न है, कैटेगरी एवरेज 12% रिटर्न है, गुड बैड डिसेंट, कैटेगरी एवरेज 14% है। एवरी इंस्टॉलमेंट इन ELSS इज लॉक्ड इन फॉर अ पिरियड ऑफ 36 मंथ्स। लॉक इन नंतर पैसे काढायचं काय? गरज नसलं तर काढू नका, इमर्जन्सी नसलं तर काढू नका। आणि सबसे बड़ा इमरजेंसी 5 साल पहले आया था, डेंजर सिचुएशन था, क्या है सबको याद है ना? हाँ ना, कोविड था, एग्री करते हो नहीं करते हो? सबसे बड़ा इमरजेंसी हम सबने जिंदगी में कोविड के बढ़कर कुछ नहीं देखा रहेगा, एम राइट? मुंबई वाला था, लोकल ट्रेन में अपना फ्रेंड है क्राउड, सामने आदमी दिखा तो डर जाता था, क्यों कोविड हो जाएगा करके, बरोबर है? हाँ, ओके ओके, थैंक यू। तो सबसे बड़ा इमरजेंसी वॉज कोविड। नाउ नेक्स्ट सम अदर कैटेगरीज, अगेन जस्ट एन एग्जांपल, नॉट अ रेकमेंडेशन। नाव मला मुलगा आहे तर सुकन्या पॉसिबल नाही आहे, तर राईटमध्ये कॅटेगरी बघतात चिल्ड्रन फंड म्हणून आहे, मुलगासाठी काही SIP चालू आहे, ओके। इकडे सुद्धा लॉक इन आहे, टॅक्स बेनिफिट भेटणार नाही। याचा फायदा काय? आय एम मोर डिसिप्लिन इन माय अप्रोच टू मनी मॅनेजमेंट अँड सिंपल, डेटा इज द सेम। वर्ष सिप विरार टू बँड्रा 11.5-12% है, कैटेगरी एवरेज 14% है ओवर अ पीरियड ऑफ 15 to 20 years। इकडे सुद्धा लॉक इन आहे, एंड आई एम मोर डिसिप्लिन। राइट, लेफ्ट वाला कौन सा फंड है? रिटायरमेंट है, वो लड़के के लिए है या मेरे खुद के लिए है? आर यू क्लियर? NPS ऑल्सो कम्स हियर, NPS भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आर यू क्लियर? दोनों में प्लस पॉइंट ओके पॉइंट है, आता विचारू शकतात प्रश्न, नंतर सुद्धा विचारू शकतात, आर यू क्लियर? उसके नीचे करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका है, कौन सा? इंडेक्स फंड। सबसे आसान तरीका करोड़पति बनने का इंडेक्स फंड्स है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, इन्वेस्टमेंटचा आजोबा पंजोबा कौन है? वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट का ये कहना है कि कॉमन मैन के लिए सबसे ईजीएस्ट टूल टू कंपाउंड क्रिएट वेल्थ इज इंडेक्स फंड। सिंपल एग्जांपल, BSE 30 में इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी में हम अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला का हम इनडायरेक्टली व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग वाया इंडेक्स फंड्स आई एम बिकमिंग अ पार्टनर,
आर यू क्लियर? नो, इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा फायदा क्या है? द फंड विल इन्वेस्ट इन रेप्यूटेड नेम्स, तो वॉलेटिलिटी विल बी रिलेटिवली लेस. एंड दूसरा फायदा क्या है इंडेक्स फंड्स का? खर्चा कम रहेगा, माइलेज ज्यादा देगा, गले कम चले ज्यादा. ओके, लेकिन इंडेक्स फंड्स का एक छोटा ओके पॉइंट है. एक पॉइंट क्या है? खर्चा कम है. लेकिन क्या क्रिकेट मैच में सिर्फ स्पिनर से काम हो सकता है की बुमराह भी जरुरी आहे? तो ऍक्टिव्ह फंड पण पोर्टफोलिओमध्ये असणं महत्त्वाचं आहे. आर यू क्लिअर? एग्री करते हो? हा ना? तो पोर्टफोलिओमध्ये दोघं महत्त्वाचं आहे. किती ते आपण प्रश्न विचारू शकतात. नेक्स्ट, राइट में जो फंड है ये भी बहुत जरूरी है, ओवरसीज फंड ऑफ फंड. थाली तो हम सब देखते हैं, बट महीने में 1-2 बार पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज, मंचुरियन वी ऑल इट. एम आय राईट? तर पोर्टफोलिओचा कुछ हिस्सा 10% ओव्हरसीज कंपनीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केलं तर पोर्टफोलिओचा रिस्क कमी करू शकतो आपण. बरेच ठिकाणी व्हॉलेटिलिटी कमी करू शकतो. हे पण अतिशय महत्त्वाचा फंड आहे. हाँ, गुड क्वेश्चन. गुड, हाँ, एक सेकेंड. हाँ, एनपीएस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? कॉस्ट थोड़ा कम है. कॉस्ट थोड़ा कम है एंड वी आर मोर डिसिप्लिन बिकॉज 60 तक हम विड्रॉ नहीं कर सकते डू अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम इमरजेंसी और फाइनेंशियल नीड. सो दैट इज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ एनपीएस. ओके, एंड दूसरा प्लस पॉइंट क्या है? 60%. लेट अस अज्यूम समबडी 60 तक एक्यूमुलेट किया 2 करोड़ रुपया. लेट अस अज्यूम आप योर एज 24, राइट? 26. ओके, 26 एज के है, 50-60 तक 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, तो ये 3 करोड़ का 60% टैक्स फ्री निकाला जा सकता है. बट चैलेंज क्या है? बचा हुआ 40% इट्स नॉट इन योर कंट्रोल. ओके, बचा हुआ 40% इज नॉट इन योर कंट्रोल. ओके, एंड बचा हुआ 40% से जो हर महीना पेंशन या एन्युटी मिलेगा, एज पर करंट रूल्स, करेक्ट मी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. That is the small challenge or drawback when it comes to annuities. Are you clear? और एक और छोटा चैलेंज है एनपीएस, बिकॉज कॉमन मैन का पैसा लगता है. प्रेजेंटली द इक्विटी एलोकेशन इज, मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन इज ओनली 75%. ऑफकोर्स 100% होगा करके हाई लेवल पे डिस्कशन मीडिया में भी अभी तक हुआ नहीं है. सेकेंड ओके पॉइंट है, एनपीएस का स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू टॉप 200. आई रिपीट, एनपीएस का स्टॉक सिलेक्शन यूनिवर्स एक एनपीएस फंड मैनेजर का टॉप 200 ही रहेगा. म्यूचुअल फंड्स में ब्रॉडर भी है, 500 के नीचे भी जा सकता है. टॉप 100 कंपनीज आर लार्ज कैप, उसके नीचे लानबाऊ मिड कैप 101 to 250 बाई सेबी मार्केट कैपिटलाइजेशन फार्मूला, उसके नीचे स्मॉल कैप एज पर ऑफिशियली इज 251 to 500, बट उसके नीचे भी अगर ठीक लगे तो निवेश किया जा सकता है. माइक्रो कैप, नैनो कैप्स में भी ऑल कम अंडर दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ओनली. तो इसका एक स्लाइड फायदा क्या है? जस्ट एग्जांपल है, आपको वेल्थ क्रिएशन अल्फा पॉसिबिलिटी नीचे के स्टॉक्स में ज्यादा होगा, बिकॉज छोटा कंपनी बड़ा होगा, बड़ा कंपनी बहुत बड़ा नहीं हो सकता है. आर यू क्लियर? तो एनपीएस इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, बट बहुत शायद पैसा बने, दैट टाइम विल टेक. ओके, सिंपल लॉजिक. 414th कंपनी 4 गुना बढ़ सकता है, अगेन जस्ट एग्जाम्पल है. 358 कंपनी 6 गुना बढ़ सकता है, अगेन जस्ट एग्जाम्पल है, नॉट अ रिकमेंडेशन. अभी बड़ा कंपनी और बड़ा होना बहुत चैलेंजिंग होता है. आर यू क्लियर विद दिस? बिकॉज हाथी चलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. एग्री करते हो? ओके, तो आर यू क्लियर विद दिस? नाउ म्यूचुअल फंड में एक और है एसडब्ल्यूपी, आई विल टच अपॉन दैट. दैट इज रिलेटिवली मोर टैक्स एफिशिएंट एंड पूरा पैसा आपके कंट्रोल में है. थैंक यू फॉर. नाउ डिफरेंट स्कीम्स का डिफरेंट रिस्क एपेटाइट रहता है. ओके, डिफरेंट स्कीम्स का डिफरेंट रिस्क टेकिंग एपेटाइट रहता है. अगेन आई गो टू जगन्स एग्जाम्पल. आई एम 48, मेरा लड़का 12 साल का है, तो आई हैव लर्न रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. मेरा स्कूल फ्रेंड जगन है, ओके, उसकी बेटी 20 साल की है, तो मेरा एसेट एलोकेशन, लेट अस अज्यूम मेरा एबीसीडी स्मॉल कैप कंपनी में, स्मॉल कैप फंड में 30% एक्सपोजर है. तो कैन जगन ऑल्सो रेप्लिकेट मी एंड हैव 30% एक्सपोजर? इट कैन बी डेंजरस. इट कैन बी डेंजरस, स्पेशली उसको मालूम ही नहीं है, वो एफडी वाला बंदा है, एफडी गोल्ड के आगे कुछ देखा नहीं है जिंदगी हो, तो वो डेंजर हो जाएगा. एग्री करते हो? हाँ ना? दैट इज वेयर अगेन रोल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर कम्स. दैट इज वेयर रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कम्स.
म्यूचुअल फंड्स में दो तरीके का प्लान होता है, डायरेक्ट और रेगुलर. कि विच विल बी चीपर? डेफिनेटली डायरेक्ट विल बी चीपर, बट गुड एडवाइजर ऑलवेज एड्स वैल्यू. 2 पॉइंट लूंगा. ओके, सिंपल. आजारी पडलो तर केमिस्टकडे जायचं की डॉक्टरकडे जायचं? डॉक्टरकडे जायचं. पण आपण कोणाकडे जातो? केमिस्टकडे जातो. ओके, अमोल पोट बिगड़लेला है, काहीतरी औषध दे. ओके, अमोल एक्सपेरिमेंट, उसको तो पूछेगा, धंधा नहीं करेगा तो वो पैसा कैसा कमाएगा? ओके, यहाँ पे कोई केमिस्ट वाला तो नहीं है ना? ऐसा है. नहीं, सीए लोग का भी एक सीए है मेरा, वो उसका केमिस्ट का 2 दुकान है पुणे में. वो बोलता है उधर ज़्यादा पैसा कमाता हूँ मैं. ऐसा. ओके, तो नेक्स्ट डे वापस पेट खराब हुआ. आई अगेन गो टू अमोल. तो अमोल क्या बोलेगा? दादा आता अँटीबायोटिक देतो, उपासपोटी घेऊ नका. फिर अँटीबायोटिक दिया, 2 दिन पेट ठीक है, दवाई बंद करो तो वापस स्टॉक मार्केट है पेट. ओके, होता है नहीं होता है? तो वापस आई गो टू अमोल. तर अमोल क्या बोलेगा? आता महाजन डॉक्टरकडे जायचं. आणि महाजन डॉक्टरचा अनुभव लई भारी आहे. स्टेथोस्कोप लावलं ना त्यांना कळलं कुठला मिसल खाल्लेला आहे मी. ओके, अनुभव आहे ना, कारण मैं तो 15 साल से पिंपरी का मिसल खा रहा हूँ लग्नानंतर. ते 25 वर्षापासून सगळं मिसल खाल्लेलं आहे. तो स्टेथोस्कोप लावलं त्यांना कळतं गोडके मिसल, अतिथि मिसल, निसर्ग मिसल, दत्तगुरु मिसल. ओके, क्योंकि 1-2 बार महाजन डॉक्टर भी मेरे को मिला था. मैं बोला डॉक्टर भर दो ना, उशीर होता है. ओके, तर डॉक्टर समझ गया, 400 रुपये का प्रिस्क्रिप्शन देगा, 4 दिन के बाद ठीक होता है. मैं राइट इन सेइंग दिस? बट इंडियंस लोग डॉक्टर के पास जाता है, केमिस्ट के पास जाता है? केमिस्ट के पास जाता है. एम आई राइट इन सेइंग दिस? नाउ अगेन आई टेक अनदर एक्झाम्पल. माझं नाव कृष्णन अय्यर ऐकलं असेल कुठे? कुठे? सिनेमा अग्निपथमध्ये मिथुन चक्र. आणि दुसरं जेठालालचा शेजारी राहणारा बबिताचा नवरा. ओके, त्यांनी माझं नाव खूप पॉप्युलर केलं आहे, त्याच्याबद्दल खूप खूप आभार. तारक मेहता अल्टीमेट सीरियल है. सब वेब सीरीज का बाप तारक मेहता है. एग्री करते हो? कभी भी कितना भी बोर हो गया रहेगा ना, एक तारक मेहता का सीरियल देख लेने का मूड हल्का हो जाएगा. स्टॉक मार्केट में एफएनओ में लॉस हो गया, एक जेठालाल को देख लो. मैं यही बोलता हूँ. ओके, जेठालाल को देख लो, खत्म हो जाएगा, मूड हल्का हो जाएगा. वो सीरियल का हीरो जेठालाल है. ही ऑलवेज प्रॉब्लम में आते रहता है. उसको बाहर कौन निकलता है? मेहता साहब जरूरी है. वो सीरियल में मेहता साहब चेंज हो गया है. अभी गोकुलधाम सोसाइटी का भी शायद रीडेवलपमेंट होगा, फिर भी सीरियल चल रहा है. ओके, इतना अच्छा सीरियल है वो. सब वेब सीरीज का बाब एक ही है. तो गुड एडवाइजर ऑलवेज एड्स वैल्यू. आई टेक माई एग्जाम्पल टू पुट इट अहेड. और एक 2 मिनट में 2 ऑप्शन है, ग्रोथ और डिविडेंड. ग्रोथ इज डेफिनेटली मोर टैक्स एफिशिएंट. ओके, ग्रोथ इज मोर टैक्स एफिशिएंट है. हाँ, सर्टन कैटेगरीज में बिकॉज डिविडेंड वो न्यू टैक्स में ये होता है, तो उसका भी फायदा उठा सकते हो. नाउ SIP कैसे चलता रहेगा? मार्केट ऊपर नीचे वरती खाली जात असणार. ओके, आता भाव खाली पडलं तर लोक घाबरतात. डर के आगे जीत है. दादरचा पुढे सीट आहे. ओके, सेंट्रल लाइन जिंदाबाद. ओके, बैठने मिल जाता है, सिंपल. तो SIP में थोड़ा और पैसा कैसा डाले इसके ऊपर बताता हूँ मैं. बट बिफोर दैट, यहाँ पे बहुत सीनियर सिटीजन्स है, तो त्यांना SIP पण करू शकतात. पण SIP पेक्षा एक चांगला कॉन्सेप्ट आहे म्युच्युअल फंडमध्ये, याला SWP म्हणतात. SIP कैसा है? सिंपल. विरार में चालू किया, हर स्टेशन में पैसा डाला तो बैंड्रा में पैसा बनेगा अपना. सिंपल. लेकिन सीनियर सिटीजन्स लाइक लॉट मेनी, माई फादर इज 85 ईयर्स ओल्ड, उनको तो इमीडिएट पैसा चाहिए. ओके, तो माई फादर रिटायर्ड फ्रॉम ए कंपनी सम 20 ईयर्स बैक. ओके, तो उनके पास 20 लाख रुपीस प्रोविडेंट फंड, PF PPF सब पैसा मिला. तो सीनियर सिटीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है लाइफ में आफ्टर रिटायरमेंट? पेंशन से ज़्यादा जरूरी, पेंशन से ज़्यादा जरूरी हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम. तो पापा का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैं भरता है, मम्मी का भाई भरता है. ओके, तो मेरे पापा ने क्या किया? 15 लाख रुपया सब जगह RBI बॉन्ड में डाला, सीनियर सिटीजन स्कीम में 2-3 जगह डाला, बैंक FD में भी डाला थोड़ा. 5 लाख रुपया इनमें से एक आध कैटेगरी में मेरे पापा ने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, SWP किया. ये एक कैटेगरी है, हाइब्रिड कैटेगरी करके है. इकडे थोड़ा पैसा FD गोल्ड में भी लगता है. FD गोल्ड, ये दादर स्टेशन जैसा है. सिंपल. मुंबई की भाषा में दादर ट्रेन जैसा है. दादर में सेंट्रल वेस्टर्न दोनों मिलता है. तो हाइब्रिड कैटेगरीज ऐसा है जहाँ पे देर विल बी ब्लेंड ऑफ डेट, इक्विटी अँड गोल्ड ऑल्सो. ओके, मल्टी ॲसेट म्हणून एक कॅटेगरी आहे, तिकडे गोल्डमध्ये पण ॲलोकेट होणार. याचा फायदा काय झालं? वॉलेटॅलिटी कमी असणार.
कन्झर्वेटिव्ह हायब्रिड म्हणून एक कॅटेगरी आहे, जास्तून जास्त इक्विटी 25% असणार. बॅलन्स्ड हायब्रिड त्याचा राईटमध्ये बघू शकता, जास्तून जास्त इक्विटी 60% असणार. तर याचा फायदा काय झाला, व्हॉलेटॅलिटी कमी असणार. आर यू क्लिअर? और सिनियर सिटीजनसाठी काय महत्त्वाचं आहे, रिटर्न की व्हॉलेटॅलिटी कमी करणं. 12 का 9 आएगा तो चलेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी 4 रुपया कम हो तो वो ज़्यादा बेटर है सीनियर सिटीजन के लिए. ओके, सो दैट इज व्हाट माय फादर डिड. इनमें से एक आध कैटेगरी माय फादर सेलेक्टेड एंड पुट 5 लाख रुपीज इन सम टाइम बैक. तो एवरी मंथ माय फादर इज विड्रॉइंग 3,300 रुपीज फ्रॉम दिस म्यूचुअल फंड वाला. 3,300 रुपीज मेरे पापा के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है. ये कैसे पॉसिबल है? SIP करताना नंबर ऑफ युनिट्स वाढतं, SWP करताना नंबर ऑफ युनिट्स दर महिने कमी होतं. बट माय फादर इज ओके विथ दॅट. क्यों? 3,300 गुणी 12 किती झालं? अप्रॉक्सिमेटली 40,000 रुपीज हुआ साल का, विच इज 8% ऑफ द प्रिंसिपल. आर यू क्लियर विथ दिस? सिंपल. तो एवरी मंथ 3,300 मेरे पापा के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, 40,000 रुपीज. और इसका टैक्सेशन का थोड़ा एडवांटेज क्या है, SWP में sometimes you will be withdrawing when the markets are up, sometimes when you will be withdrawing only when the markets are down than the. अब लेट अस अज्यूम मेरे पापा ने 20 रुपीज़ में परचेस किया है, तो कभी कभी रिडम्पशन 18 रुपये में होगा, तो वहाँ पे टैक्स आर्बिट्राज है. आर यू क्लियर विद दिस? इन सर्टन कभी कभी 22 हो गया तो ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर 2 रुपीज़ में टैक्स देना पड़ेगा. आर यू क्लियर विद दिस? सिंपल टैक्स आर्बिट्राज है. इन सर्टन कैटेगरीज में ज़्यादा भी टैक्स एफिशिएंट कर सकते हो. Okay, now, so my father is doing this SWP for last 7 years. अंदाजा असं 5 लाख रुपया डाला आहे मेरे पप्पाने. आजच्या दिवशी अंदाजा 3.25 लाख रुपये काढलेले आहे पप्पांनी. ओके, FD जर असलं तर याचा व्हॅल्यू किती असतं? 5 लाख रुपीज ही रहेगा, बिकॉज दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड ना. ओके, नाउ माय आंटी का ऑपरेशन है, पप्पा का छोटा काकूंचा ऑपरेशन आहे 10 दिवस नंतर, तर मेरे अंकल को पैसा चाहिए. तो मेरे पापा ने पैसा ब्रेक करने के लिए बैंक FD गया, तो मेरे पापा को कितना पैसा मिलेगा? 5 लाख ही मिलेगा. लेकिन ये SWP में वैल्यू मेरा पापा का आज के दिन में 6.25 लाख रुपीज़ है. आर यू क्लियर? अच्छा रिटर्न है, मतलब थोड़ा रिस्क लिया पापा ने, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन भी हुआ. दैट इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट SWP. आर यू क्लियर? नाउ बीच में कोविड के वक्त ये डाउन भी हुआ था. ओके, 4.4, 4.44, 4.28 तक भी आया था. क्यों? क्योंकि मार्केट भी गिर रहा है एंड एवरी मंथ 3,300 रुपया विड्रॉ भी हो रहा है. आर यू क्लियर विथ दिस? नाउ 20 days बैक व्हाट हैपेंड वाज, नाउ टुडे माय फादर इज 85 years old. ही इज ऑल्सो ऑनलाईन. कोविडचा पहिला 15 दिवस भरपूर त्रास होता. कारण काय? सीनियर सिटीजन का जिंदगी में सबसे ज़्यादा टाइम पास क्या होता है? 2 तास पेपर वाचायचं आणि 4 तास डिस्कस करायचं. हाँ ना, ये पूरा बंद हो गया था बिकॉज सबको डर लग रहा है, तो कोई बिल्डिंग में आ नहीं रहा है, गार्डन में कोई नहीं आ रहा है. एम आई राइट? तो पापा ने क्या किया? टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप डाउनलोड किया. ओके, पढ़ने का ना कुछ तो टाइम पास चाहिए, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ऐप मेरे पापा ने डाउनलोड किया. तो अभी मेरा पापा का सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, बाकी सब है. ओके, इज 85 year old अंकल इतना ऑनलाइन है, स्विगी, जोमेटो, UPI, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब कर लेता है थैंक्स टू कोविड. आई एम श्योर नॉट ओनली माय फादर, मेनी ऑफ अस को कोविड ने ये सिखा दिया. जूम कॉल सब कर लेता है. एम आई राइट? उनका स्कूल फ्रेंड्स का व्हाट्सएप ग्रुप भी है 15 लोग का. ओके, दैट इज कोविड ने हमको ऑनलाइन सिखा दिया. एग्री करते हो? पर 15 दिवस अगोदर काय झालं, पुढे माय फादर, पापा के पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन है ना, तो मेरे पापा ने क्या किया, ABCD ऐप में गया और बोला 5 लाख रुपया डाला, चल वैल्यू देखता है इसका कितना, वेबसाइट में जाके वैल्यू देखता है. तो मेरा पापा का फंड मध्ये पोर्टफोलियो वैल्यू 5 लाख का 6.25 लाख है, 6.25 लाख है. तो ABCD फंड में वैल्यू 7.8 लाख रुपीज़ हुआ है. ओके, ABCD फंड में वैल्यू 7.8 लाख रुपीज़ हुआ है. तो पापा ने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल लगाया. डिस्ट्रीब्यूटर मेरा स्कूल फ्रेंड का छोटा भाई है. अरे तूने तो मेरा नुकसान कर दिया. क्यों नुकसान कर दिया? मेरा वैल्यू 6.25 लाख रुपया है, तूने दूसरा कोई फंड बोला, उसमें तो वो फंड तू बोलता तो 7.8 लाख रुपीज है, तो मेरा तो 1.5 लाख रुपया का घाटा हो गया. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी डिस्ट्रीब्यूटर है, ही इज मैनेजिंग मनी ऑफ लॉट मेनी कस्टमर्स लाइक माय फादर फॉर लास्ट 10-12 years.
तो बोला अंकल बिल्कुल सही, लॉस है तो अभी भी माटूंगा मी आहे. तो बोला अंकल एक काम करता हूँ, ओके वाशीमध्ये माझा एक मीटिंग आहे, वाशीनंतर मी 2-4 दिवस नंतर मी नेरूलला येऊन तुम्हाला भेटतो, काकूंना सांगा इडली वडा सांबार बनवायला, नंतर आपण डिस्कस करू. तो वाशी के बाद घर पे आ गया तो मेरे पापा ने वही पॉइंट निकाला इडली वड़ा खाते खाते. ओके मेरा तो लॉस हुआ. तो डिस्ट्रीब्युटरने बोला बिलकुल सही आहे अंकल, तुमचा लॉस झालं मान्य आहे मला, पण तुमचा लॉस जर झालं आमचं पण लॉस झालं ना, माझा पप्पांचा पण लॉस झालं. क्यों? वो डिस्ट्रीब्यूटर का पप्पा का पैसा भी वही फंड में, हु इज माय फादर्स क्लासमेट. आर यू क्लियर? समझ में आया? सिंपल स्किन इन द गेम बोला जाता है इसको, ईजी है ये. एथिक्स, लॉट मेनी थिंग्स आर देयर. ओके तो डिस्ट्रीब्यूटर का भी लॉस हुआ नहीं हुआ? ओके तो देन यही मेरा पापा का पोर्टफोलियो का वैल्यू ड्यूरिंग कोविड कितना गया था? 4.28 तक आया था. क्यों? विड्रॉ हो रहा है तो पापा का बीपी शुगर बढ़ा रहेगा, टेंशन आया रहेगा नहीं आया रहेगा? टेंशन आया था. आर यू क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला घाबरू नका काका, घाबरू नका, घाबरू नका, वो आश्वासन दिया था. मेरा पापा का पैसा भी सेम फंड में SWP है. तुम्हारा लॉस हो रहा है तो मेरा पापा का भी लॉस हो रहा है. आर यू क्लियर विद दिस? ओके नाउ जो फंड 7.8 लाख रुपीस रिटर्न दिया है उसका वैल्यू कितना गया रहेगा कोविड में? 3.5 लाख के आसपास गया रहेगा. बिकॉज ज़्यादा रिटर्न दिया तो ज़्यादा गिरा भी रहेगा ना. आर यू क्लियर? बिकॉज एक फंड मैनेजर का 2 ऑब्जेक्टिव होता है व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स. रिस्क को रोकना, विकेट रोकना भी जरूरी है. रिटर्न देना सबसे आसान तरीका फॉर अ फंड इज टू गिव रिटर्न. आई रिपीट, द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग फॉर अ फंड इज गिव रिटर्न, बट वो रिस्क पे फोकस ही नहीं करेगा. आर यू क्लियर विद दिस? तो अच्छा फंड मैनेजर, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो फंड सेलेक्ट. टुडे द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग फॉर न्यू जनरेशन इज ABCD वेबसाइट में चले जाओ, टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में पैसा डालते हैं. हमारा ये सबसे डेंजरस इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है. दिस इज नोन एज हर्ड मेंटेलिटी. सबसे डेंजरस है बिकॉज अ टॉप परफॉर्मिंग फंड मे नॉट ऑलवेज बी टॉप परफॉर्मिंग. एग्री करते हो? तेंडुलकर, विराट कोहली, दे हॅव ऑल्सो हॅड बॅड पॅचेस इन देअर कॅरियरमध्ये. बरोबर आहे? लोकांना सांगायला आले अनुष्का पनवती हो गया लगता है, हाँ ना, म्हातारा झाला है विराट, अभी रिटायर होना चाहिए, हाँ ना, बोला नहीं बोला. तो बट विराट बीइंग विराट, तेंदुलकर बीइंग तेंदुलकर, वो लोग स्टिल प्रैक्टिस करके परफॉर्म हुआ है. एम आई राइट इन सेइंग दिस? तो गुड फंड्स, गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स अकॉर्डिंग टू मी, they reject bad funds. Okay, and they know customer psyche, customer mentality much better. Are you clear? Agree करते हो नहीं करते? है ना? तो according to me, good distributor always adds value. Now, are you clear with SWP? Okay. Now SWP में, SIP में और थोड़ा पैसा डालना है. Back to SIP. Okay. इफ यू हॅव अ होम लोन, डोंट प्रीपे होम लोन. 7 वर्षानंतर होम लोन प्रीपे करू नका. कारण काय? इंटरेस्ट कंपोनंट. ओके होम लोन प्रीपे करायची गरज नाही. कारण काय? आफ्टर 7 years द इंटरेस्ट कंपोनेंट कम्स डाउन आणि प्रिन्सिपल वाढायला स्टार्ट होतं. इफ वी प्रीपे होम लोन देन 2 लोगों का ज़्यादा फायदा होता है. कौन है ये 2 लोग? एक है बैंक और दूसरा निर्मला ताई आणि मोदी काका. We may end up paying more tax under old income tax regime. Okay, but and एक और सिंपल आइडिया है, SIP से हम इंटरेस्ट कैसे रिकवर कर सकते हैं. 50 lakhs का लोन लिया है तो ओवर अ पीरियड ऑफ 240 months हम बैंक को 1 करोड़ रुपया देते हैं. एंड ये 1 करोड़ रुपया जब आता है तो दिमाग हमारा हायजॅक हो जाता है. आपण दुप्पट पैसे बँकेला कशाला द्यायचं? वी इग्नोर दॅट 240 months. बरंच लोक हे मिस्टेक करतात. पुढे एक एक्झाम्पल पण सांगतो. तर SIPच्या माध्यमातून इंटरेस्ट कसं रिकवर करायचं? 50 लाखाचा दर घेतलो, 50 लाखाचा डेट टाइम किती झालं? 1.5 टाइम्स किती झालं? 75,000 भाग 12 किती झालं? 6,250 रुपयाचा इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्ये लोन घेताना विरारमध्ये जर आपण SIP केलं आणि हे SIPला बांद्रापर्यंत आपण टिकवलं 240 मंथ्सला, 12% हिशोबाने आपण आरामात इंटरेस्ट रिकवर करू शकतो. खिशातून आपण 15 लाख इन्वेस्ट करणार, त्याचा व्हॅल्यू 12% हिशोबाने 50 लाखाचा जवळपास असणार. गुड आयडिया, बॅड आयडिया? ओके, गुड आयडिया, बॅड आयडिया? ओके, तर दॅट इज 60 lakhs का लोन लिया. 60 lakhs का ओव्हर अ पिरियड ऑफ 240 मंथ्स आपण 1.25 करोडचा आसपास बँकेला देतो. बरंच लोकांना काय वाटतं, एवढा पैसे कशाला बँकेला द्यायचं? इट इज ह्युमन टेंडन्सी. तर
60 लॅक्सकडे लोक लक्ष देतात, 240 महिन्याकडे लक्ष नसतं. इट इज ह्युमन टेंडन्सी, इल्युजन होत आहे. ओके, तर बरंच लोक लोन प्रीपे करून टाकतात. 11-12 वर्षानंतर सुद्धा लोन प्रीपे करताना बघितलं आहे मी लोकांना. बिकॉज स्कूल में हमको मैथ्स सिखाया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं सिखाया जाता. एम आई राइट? ओके, तो 60 लॅक्स का 1.5% किती झालं? 90,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 12 किती झालं? 7,500 रुपीज. इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करो लोन लेते वक्त, एंड यही SIP को विरार से लेके बैंड्रा तक टिकाओ, तो बैंड्रा में मैं 60 लाख रुपीज इंटरेस्ट रिकवर कर सकता हूँ. गुड आइडिया, बैड आइडिया? सीखने मिला नहीं मिला? तो आपका एसोसिएशन के लिए ताली प्लीज, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट आपका एसोसिएशन सेबी के पहले है. ओके, अब यही इंटरेस्ट मेरे को 14 ईयर्स में रिकवर करना है, तो क्या करना पड़ेगा? SIP को सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा. SIP को सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा. आर यू क्लियर? एवरी ईयर इसको 10% से बढ़ाओ तो 14 ईयर्स में इंटरेस्ट रिकवर कर सकता हूँ. अब ऐसा भी हो सकता है की बरंच लोकांना ही आयडिया आता कळतं, प्रॉपर्टी घेऊन 4 वर्ष झाले. ओके, तर काय करायचं? स्टार्ट करा ना, जे थोडा जास्त वाढवा. ओके, थोड़ा जास्त पैसे टाका, 12,000 टाकावा लागेल. अब 12,000 नहीं है तब भी 4,000 5,000 से स्टार्ट तो करो ना, बिकॉज स्टार्ट करेंगे तभी तो चर्चगेट तक ट्रेन पहुंचेगा. एम आई राइट इन सेइंग दिस? नाउ मेनी इंडियंस डोंट स्टार्ट, बी प्रोक्रेस्टिनेट. एम आई राइट? तो स्टार्ट करना जरूरी है. एम आई राइट इन सेइंग दिस? नाउ वी लिव इन इंडिया. हम ऐसे इंडियंस को जानता हूँ जिनका इंडिया के 4 कॉर्नर में 4 घर है. कितना? 4 कॉर्नर में 4 घर है. स्कूल, मेरे बहुत सारे फॅमिली फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स का पुणे में 3-3 घर है. स्टोरी ऐकायचं आहे? त्याच्यापैकी अजून एक लाडक्या फ्रेंड आहे माझा, संदेश कोपीकर. संदेश आणि मी एकच बेंचमध्ये, सेम स्टोरी. मैं कर्जत लोकल, वो कसारा लोकल पकडा, सिंपल. संदेशनी 6 वर्ष अगोदर आपलं 3रं घर खरेदी केलं बानेरमध्ये, 2 BHK. कितीचं घर? 80 लाखाचा 2 BHK अल्ट्रा लॅविश प्रॉपर्टी 2 BHK मध्ये खरेदी करायचं कारण जाणायचं, समजून घ्यायचं. समोरच्या सोसायटीमध्ये साडूनी 1 BHK घेतलं. हे नया भारत आहे, हा ना? साडूनी घेतलं, तू AVP आहे रे, मी तुझा 2 लेवलवरती आहे मी, हा ना? खरीदी कर दिया. अभी कल का स्टोरी सुना, 2 दिन पहले का स्टोरी. माझं नाव अय्यर है, सेक्रेटरीचा भिडे पण आहे मी. ओके, समझ में आया? मतलब बिल्डिंग का सेक्रेटरी भी हूँ मैं. तो वर्स्ट जॉब इन बिल्डिंग इज सेक्रेटरी का ही काम है, वो लोगों को सकता है. तो मेरा एक नेबर ने दसरा के पहले दिन 15 लाख का गाड़ी लिया. कितना? 15 लाख का कार लिया. तो उसके ऊपर वाला का 36 का आंकड़ा चलता है दोनों का. ओके, तो उसने 22 लाख का कार लिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 लाख का. फिर पेड़े बांटा सोसाइटी में. ओके, मेरे घर पे भी पेड़ा आया. सिक्योरिटी गार्ड पेड़ा लेके आया, बोला किसका पेड़ा है ये? वो बोला नहीं, ऊपर वाला 306 का है. मैं पेड़ा खाया, घर पे घंटी बजाया, बोला दादा पेड़ा बहुत अच्छा था. ओके, सोसायटी का दान धर्म पण पेंडिंग आहे सर तुमचं. काय? 2,500 रुपये मेंटेनन्सचा पेंडिंग आहे, 3 महीने झाले. ओके, नया भारत है ये. मैंने बोला दादा बुरा मत मानना, आपका घर का पेड़ा खाया है मैं, 15 दिन में नहीं देगा ना, यही से सिक्योरिटी गार्ड आपका घर का प्लग लेके ले चला जाएगा. है मैं राइट इन सेइंग दिस? कितने का कार लिया? 22 लाख का इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना? क्यों लिया? नेबर ने 15 लाख का लिया करके. आर यू क्लियर? मेंटेनेंस कितना पेंडिंग है? 7,500 रुपये. चिंदी चोर बोलते हैं अपने कंट्री में, बहुत लोग रहता है सर. है मैं राइट? रहता है नहीं रहता है ना? वो माइंडसेट है. फुकट में मिलेगा खाने का, अनलिमिटेड मिसल 99 रुपीज़. अगला दिन पेट खराब होएगा तो भी चलता है. महाजन डॉक्टर का धंधा ऐसे ही बढ़ता है. अमोल का भी बिगनर था, केमिस्ट, ऐसे ही धंधा बढ़ता है. ओके, तो लेट अस कम बैक टू संदेश अगेन. ओके, संदेश ने घर क्यों खरीदा? साडूनी 1 BHK घेतलं तर महत्त्वाचं आहे ना. मी सिनियर VP आहे तोच कंपनीमध्ये, आणि इंटिरियरमध्ये 30 लाख खर्च किया. जरूरी है, पण करना है ना भाई. तू 20 लाख किया तो मैं 30 लाख करूँगा ही करूँगा. ओके, तो अब स्टोरी क्या है? संदेश IT वाला है, लास्ट बहुत साल से IT में है, 25 ईयर्स प्लस IT में है. अब IT आके दुनिया बदल दिया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग. टुडे CS जॉब इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी. एम आई राइट?
एग्री करते हो? सीए का जॉब भी बहुत टेक वाला हो गया है, और वन ऑफ द रीजंस आई शिफ्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे इज बहुत काम ऑनलाइन कर लेता हूँ, सिंपल, बहुत काम मैं ऑनलाइन कर लेता हूँ, तो दैट इज वाई आई शिफ्टेड टू पुणे। अभी लास्ट कोविड के बाद मेरा जिंदगी इतना बदल गया, एक ही बार एयरपोर्ट गया मैं, वो भी आई हैड टू गो फॉर एन इमरजेंसी ट्रेनिंग इन बड़ौदा, इसके लिए मैं गया। अभी 20 days बैक आई हैड टू डू समथिंग सिमिलर, वर्कशॉप करना था मेरे को बेंगलुरु में, ओके मेरे को पैसा मिल रहा था, बट 10 दिन पहले आई कॉल्ड अप दैट एचआर एंड सेड, एचआर एक काम करते ना, यही ट्रेनिंग यू आर पेइंग मी 12,000 15,000 रुपीज फॉर अ ऑफलाइन सेशन, ओके यू आर, आप मेरे को फ्लाइट का भी पैसा दे रहे हो, होटल का भी पैसा दे रहे हो। मैं बोला एक काम करता है, बिकॉज ऐसा व्यापारी सिंपल है, मेरे को फ्लाइट का पैसा खर्चा पहला करना पड़ेगा, एंड वो 60 days के बाद देगा, मेरे को जीएसटी पहला देना पड़ेगा, हमारा राइट। तो मैंने क्या बोला, एक काम करते हैं, लगा के देखते हैं। मैं उसको बोला सेम प्रोग्राम आई विल डू ऑनलाइन एट 50% रेट। वो पहिला बोला नाही नाही ऑफलाईन करते आपला बाय। मैं बोला बात सही आहे, आपलं ठरलेलं आहे, पण आपण एक्सपेरिमेंट तरी करू ना, नाही झालं तर मी परत येतो। ओके सेम ट्रेनिंग आई डिड ऑनलाइन एट 50% रेट मेरा, लेकिन 24 आवर्स बच गया ना। एग्री करते हो नहीं करते हो? बहुत सारा एडमिन बिलिंग एमआई बहुत काम पेंडिंग था, थोड़ा थोड़ा कर लिया। एम आई राइट इन सेइंग दिस? एग्री करते हो? टाइम सेव इज मनी सेव्ड। तो नाउ कनेक्टिंग डॉट्स, संदेश का सैलरी 60 लाख रुपीज था बिफोर कोविड। कितना? 60 लाख रुपीज था कोविड। ये AIML आया, 5 महीने में कंपनी ने 40 लाख रुपया 20 लाख रुपया पगार कम कर दिया। गडबड हुआ नाही हुआ? येस नो, गडबड हुआ नाही हुआ? अभी अजून गडबड काय झालं संदेशच्या आयुष्यात, भोसरीमध्ये घर घेतलेलं 15 वर्ष अगोदर 25 लाखाचं, 5 महिने झालं भाडेकर भाडा देत नाही, आणि कधी कधी भाडेकर लई लबाड असतात। भाडेकरने काय केलं आहे, 2 BHK मध्ये फ्रेंड को लेके आया गाव से, मालकांना सांगायचं नाही तू माझा भाऊ आहे, त्याच्याकडून 8,000 रुपये वसूल करतो। मजा आ रहा है ना लाईफ में? आणि त्याने क्राईम पेट्रोलचं काम केलं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है लाईफ में संदेश का? म्हणजे सिंपल आहे, संदेश महाभारताचा अभिमन्यू आहे। इकडे आता संदेशला प्रॉपर्टी विकायचं आहे, अडचण काय? 15 वर्ष अगोदर जे प्रॉपर्टी खरेदी केली होतं भोसरीमध्ये 25 लाखाचा, त्याला 50 लाखमध्ये विकायचं आहे। अडचण काय? तोच एरियामध्ये तोच बिल्डरचा नवीन घर 50 लाखमध्ये भेटतंय। सेम प्रॉपर्टी सेम बिल्डर 1 किलोमीटर इनसाइड 50 लाखमध्ये भेटतंय। आता तुम्ही मला सांगा कुठलं घर खरेदी करणार तुम्ही, नवीन की जुनी? नवीन। सिंपल लॉजिक। आता ब्रोकर लोक लई लबाड असतात, ते लोक काय म्हणतात, दादा 45 लाखमध्ये विकून देतो, 1% कमीशन द्या। संदेशला तो पटत नहीं, प्रैक्टिकल रहेगा 45 लाख में बेचना चाहिए, बट वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं 60 लाख का तो EMI प्लस इंटीरियर का खर्चा है, वो सब तो थोड़ा तो पैसा चाहिए ही चाहिए, है ना। अगेन इमोशनल वर्सेस प्रैक्टिकल। तो फंसा हुआ है नहीं फंसा है संदेश? तो ये स्टोरी बताने का रीज़न क्या है? ये स्टोरी बताने का रीज़न क्या है? प्रॉपर्टी कधी इन्व्हेस्टमेंट नसतं, सुखी माणूस भाड्यात राहतो। एग्री करते हो नहीं करते हो? ओके ओके डिफिकल्ट है, बट कभी कभी प्रैक्टिकल होना जरूरी है। एम आई राइट इन सेइंग दिस? कभी कभी प्रैक्टिकल होना जरूरी है, बट व्हेन इट कम्स टू मनी मैनेजमेंट वी बिकम वेरी वेरी इमोशनल एंड वी एंड अप बाइंग 2-3 प्रॉपर्टीज, वी एंड अप बाइंग लैंड ऑल्सो। सो समटाइम्स बी प्रैक्टिकल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्री? नाउ म्यूचुअल फंड्स का फायदा क्या है? 5,000 रुपीज़ में भी हम SIP स्टार्ट कर सकते। ओके मेरे घर में काम करने वाली मावशी का भाऊ साखर कारखाना इंदापूरमध्ये आहे, त्यांचा SIP ABC स्मॉल कॅपमध्ये 2018 पासून तिप्पट झालेले आहे पैसे। त्यांचा साखर कारखान्यामध्ये सुद्धा असं प्रोग्राम मी घेतलं, त्यांचा कॉन्फिडन्स एवढा वाढलेला आहे, तो काय म्हणतो, दादा आता मार्केट पडलं ना, किती पडू द्या, माझ्याकडे 20 लाख रुपये, मी STP करणार, 8-10-12 महिन्याचा STP करणार। दॅट इज द पॉवर ऑफ SIP। एग्री करते हो? ओके नाउ लास्ट 2-5 मिनिट प्रश्न असलं तर विचारा। परत खालीकडे येतोय 2 पॉइंट। अच्छा ओके बघू ना आपण। थालीमध्ये तुम्हाला काय वाटतं, काय पेंडिंग आहे? सगळं डिस्कस केलेलं आहे आपण। व्हॉट इज पेंडिंग इन दिस थाली? तुळशी विवाहानंतर लग्न स्टार्ट होणार, आणि लग्न म्हणजे श्रीखंड सगळं महत्त्वाचं आहे। तर इन्व्हेस्टमेंटचा थालीमध्ये सुद्धा 2 स्वीट असणं महत्त्वाचं आहे। स्वीट नंबर 1 हेल्थ इन्शुरन्स। एग्री करते हो? स्वीट नंबर 1 हेल्थ इन्शुरन्स असणं महत्त्वाचं आहे। स्वतःसाठी कंपनीवर डिपेंडंट असणं,
स्वतःचा असणं महत्त्वाचं आहे. आणि दिस इज वेअर 90% इंडियन्स गो रॉंग. दिस इज वेअर 90% इंडियन्स गो रॉंग. दे आर नॉट कम्फर्टेबल विथ बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस. ओके, त्यांना काय वाटतं, खर्चा काय को करने का, कंपनी में फ्री में मिल रहा है ना. ओके, मुफ्त का चंदन आगे समझ जाने का. आर यू क्लियर? एंड कोविड में इसका ही दुष्परिणाम बहुत लोगों को झेलना पड़ा है. एम आई राइट? क्योंकि कंपनी का पॉलिसी 4 लाख का था, हॉस्पिटल में खर्चा 20 लाख आया, गडबड घोटाळा झालेला आहे. बरंच लोकांचं आयुष्य पटरीवरून सरकलेलं आहे. एम आई राइट? मुंबईचा भाषेत ना ना. तो अगेन गोइंग बैक टू संदेश का पूना में कितना घर है? 3 घर है, 2 कार है, तो कितना लोन है उसका? 5 लोन है, लेकिन खुद का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उसका. ओके, कोविड में फटका लगा उसको. आर यू क्लियर? तो खुद का हेल्थ इंश्योरेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम. एग्री करते हो नहीं करते हो? ओके, विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट, ये थाली में एक और रिस्क कवर जरूरी है, इसको टर्म इंश्योरेंस बोला जाता है, विच इज अ लाइफ इंश्योरेंस. टर्म इंश्योरेंस ऐसा जीवन बीमा है जिसमें मैच्योरिटी में रिटर्न मिलता नहीं है. अगेन, ये कॉन्सेप्ट इंडियंस कंफर्टेबल नहीं है. बहुत लोगों को क्या लगता है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है. तो मेरे एज में 48 के एज में मेरे को 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस चाहिए, तो अप्रॉक्सिमेटली 75,000 प्रीमियम आएगा, अज्युमिंग आय एम अ नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर. ओके, 90% लोक भारतात हे टर्म इंश्योरेंस घेत नाही. कारण काय, ते लोग कसं पॉलिसी घेणार, यही 75,000 भर के 10 लाख का पॉलिसी लेगा विरार में, बैंड्रा तक प्रीमियम भरेगा, बैंड्रा में आने के बाद 18 लाख रुपये मिलेगा. लेकिन दे फॉरगेट, कांदीवली मलाड के बीच में, पार्ला सेंटा क्रूज के बीच में फैमिली कुछ हो गया, तो हु इज गोइंग टू टेक फैमिली टिल चर्च गेट. एम आई राइट इन सेइंग दिस? एंड अगेन, जीवन विमा लेना जरूरी आहे. अँड मैंने CA इन्स्टिट्यूटमध्ये पण हे प्रोग्राम केलेला आहे. बरंच CA लोकांना ते टर्मचा कॉन्सेप्ट दे डोंट डायजेस्ट, बिकॉज सिंपल है, बिकॉज वी थिंक इंश्योरेंस इज एन इन्वेस्टमेंट. 2 प्रोडक्ट कभी इन्वेस्टमेंट नहीं होता. फर्स्ट इज जीवन बीमा अँड सेकंड इज प्रॉपर्टी. ओके, तो इकडे ट्रेनिंग संपवतो. आनंद वाटला कनेक्ट करताना काही. ओके, थँक्यू टू ऑल ऑफ यू. चांगला वाटला मला. साठी ताली प्लीज. काही प्रश्न असला तर नक्की विचारा. ट्रम्पवर नक्की येतो मी. हां, एनी डाऊट्स, क्वेश्चन्स? ओके, सर तुमचा प्रश्न. हां, yes, I will touch upon that. Okay, now let us go back to Trump once again. Okay, now अभी तो मार्केट ना के बरोबर डाउन हुआ है. Let us go back to 2008. Market was 60% डाउन. एग्री करते हो? ओके, एंड माई ब्रदर इसे IT वाला है. He was working with a company known as सत्यम कंप्यूटर्स एंड लीमन प्रोजेक्ट में था. समझ में आया? तो एक आग था, दूसरा तरफ खाई था, एंड तीसरा एडवेंचर मेरा भाई जिंदगी का कर रहा था. ही वॉज गेटिंग मैरिड टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ओके, ही वॉज गेटिंग मैरिड, सीरियस है, टू ही वॉज गेटिंग मैरिड टू अ. सो आफ्टर एंगेजमेंट, ओके, आफ्टर सत्यम कंप्यूटर्स में था, फिर उसको IBM में जॉब मिला. IBM में जॉब मिला, तभी नैस्कॉम ने सर्कुलर निकाला कि सत्यम का एम्प्लॉइज को कोई पोर्च नहीं करेगा करके. क्यों पोर्च नहीं करेगा? बिकॉज सत्यम वॉज अ ग्लोबल जायंट इन IT. ओके, एंड नैस्कॉम का ग्लोबली में इंडियन IT का अभी बहुत एम्प्लॉइज सत्यम छोड़ के चले गए, तो क्या होगा? प्रोजेक्ट ठप हो जाएगा और इंडियन IT का ग्लोबल इमेज. एंड सत्यम के पास तभी फीफा का बड़ा प्रोजेक्ट था. ऐसा सिचुएशन था. तो ये सिचुएशन जब हुआ, मेरे भाई ने सिंपल काम किया, फादर इन लॉ के पास गया, बोला काका एंगेजमेंट झालेलं आहे, लग्न करायचं काय? ओके, क्यों? सिचुएशन बहुत अनसर्टन है. एम आई राइट? 60% मार्केट डाउन है. मेरा भाई का सुपर बॉसेस जो 1.25 करोड़ 80 करोड़ पैकेज में थे, वो लोग 60 लाख का नौकरी में जा रहे हैं आजू बाजू कॉम्पिटिशन में. आर यू क्लियर? ऐसा सिचुएशन था. मेरा भाई का स्टोरी ऐसा है. ओके, सत्यम में ऐसा रूल था कि इफ़ यू आर इन वन प्रोजेक्ट फॉर 15-18 मंथ्स, तुमको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा करके. तो उसके एंटिसिपेशन में मेरा भाई ने जुलाई 2008 में गाड़ी ले लिया. ओके, लेकिन वो सितंबर 15 2008 को क्या हो गया? सत्यम का लीमन का डब्बा फूट गया. ओके, ही वॉज विथ लीमन प्रोजेक्ट, तो पैसा भी आया नहीं.
आर यू क्लियर? ऐसा सिचुएशन था। तो मेरे भाई के फादर इन लॉ एकदम कृष्ण स्वामी अंकल एकदम हॉरोस्कोप टकाटक पढ़ लिया, ओके, और बोला तेरे को, उन्होंने उतना बोल दिया, तेरे को सत्यम से नहीं निकालेगा, तेरे को सत्यम, एंड डर मत, ऐसा होते रहता है, लाइफ इज ऑल अबाउट अप डाउन, एम आई राइट? अनसर्टेनिटी, जॉब के बाद भी तो कुछ हो सकता है। तो शादी हो गया उनका। आर यू क्लियर? नाउ व्हाई आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स इज टुडे व्हाट इज हैपनिंग इज मार्केट 4% गिरता है तो मेरा नेबर ज़्यादा खुश होता है, बिकॉज वो एफडी वाले अंकल है। आर यू क्लियर? एग्री करते हो? आज के दिन में मार्केट, इंडियन मार्केट, वी आर इन अ वेरी 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 सेफ बोट कंपेयर टू व्हाट इज हैपनिंग इन टर्मोइल जो दुनिया भर में चल रहा है। ओके, अमेरिका में सम टाइम बैक टॉयलेट पेपर का तकलीफ हुआ था। ओके, टॉयलेट पेपर का तकलीफ हुआ था। ओके, तो एग्री करते हो? वी आर इन अ वेरी वेरी सेफ बोट। नाउ व्हाट हैपेंस टुडे इन मार्केट इज एवरी न्यूज बिकम्स अ ब्रेकिंग न्यूज। तो मनी मैनेजमेंट करना है, सिंपल रूल, तो बहुत सारा व्हाट्सएप में ना ऐप्स को डिलीट कर दो, मनी कंट्रोल ऐप, ये सब डिलीट कर देना चाहिए। एग्री करते हो? मेरे में मनी कंट्रोल ऐप ही नहीं है, देन पैसा तुम्हारे कंट्रोल में रहता है। एग्री करते हो? नहीं करते हो? एंड मार्केट 4% गिरता है, 400 पॉइंट गिरता है, तो माई नेबर इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। क्यों? वो एफडी वाला अंकल है। रिसेशन आने वाला है, ये सब, एंड मीडिया ऐसा है, 90% मीडिया में न्यूज़ क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? 90%, बिकॉज ह्यूमन ब्रेन को भगवान ने ऐसा बनाया, नेगेटिव न्यूज़ जल्दी पकड़ता है। पॉजिटिव न्यूज़ ये IAP हुआ करके कौन सा मीडिया चैनल में डालने वाला है क्या फ्री में? पार्ला इन्वेस्टर्स एसोसिएशन जो सेबी के पहले चल रहा था, उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया, कौन सा न्यूज़ चैनल बता रहे हैं, बोलो ना। एम आई राइट इन सेइंग दिस? हाँ ना? तो सिंपल नेगेटिव न्यूज़ से दूर रहो। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको हमारा थाली मैनेज, हमको हमारा थाली एसेट एलोकेशन कंट्रोल करना जरूरी है। और लेट मी 2 कदम आगे बढ़ो, एक आंसर मिला क्वेश्चंस का, एंड डेटा वही है। हमको विरार में बैठ के बांद्रा तक जाना है, तो अभी तक गाड़ी भाईंदर में भी नहीं पहुंचा है, तो काहे को टेंशन लेने का? सिंपल, एम आई राइट? तो हमको पोर्टफोलियो रिव्यू कभी करना है, अंधेरी के आसपास आएगा तो रिव्यू करो ना। अभी गाड़ी भाईंदर में, तो काहे को टेंशन लेने का? एम आई राइट? उल्टा कीप एक्यूमुलेटिंग यूनिट्स, कीप, बिकॉज वी आर इन अ वेरी वेरी सेफ है। ओके, मेरा बिल्डिंग में अभी पार्किंग प्रॉब्लम आज चालू हो गया था। क्यों? हाँ, क्यों? कार ज़्यादा लोग ले लिया ना, अभी GST कम हो गया। ओके, तो कार का, बिकॉज आदमी जितना ईगो रहता है ना, आज के दिन में इंडियन लोग कार खरीदना बंद कर दिया है। टुडे इंडियंस आर बाइंग SUV। ओके, टुडे इंडियंस आर नॉट बाइंग कार्स, वी आर बाइंग SUV। मेरा 80 लोगों ने रील देखा, मैंने ना ये करते हो इनॉग्रेट चाबी के साथ रील देखा। एम आई राइट? लॉन्ग वीकेंड पार्ला स्टेशन से ज़्यादा एयरपोर्ट में गर्दी होता है। एग्री करते हो? नहीं करते हो? ओके, दिस वॉज अनबिलीवेबल। एंड ये सब हम कैसे जाते हैं? टुडे पीपल आर नॉट गोइंग टू गोवा फॉर अ हॉलीडे। क्यों? कॉस्टली हो गया। एंड लॉन्ग वीकेंड मतलब फ्लाइट और इंडिगो और एक्सपेंसिव हो जाता है, तो और 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया ज़्यादा खर्चा करो, वियतनाम घूम के आओ ना। फीलिंग भी ज़्यादा आता है, रील बनाने में ज़्यादा मजा आता है। बिल्डिंग ग्रुप में डालो, फैमिली ग्रुप में डालो, तो क्या होता है, और 4 लोग जाता है। एंड कैसा जाता है? उसमें भी EMI आ गया, इतना सारा EMI कंपनी है, EMI पे EMI आ गया अपने कंट्री में। एम आई राइट इन सेइंग दिस? हाँ ना? तो नाउ व्हाट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, नाउ मेनी आर आस्किंग मी रिवर्स क्वेश्चन ऑल्सो, सर गोल्ड यहाँ से भागेगा क्या? हाँ ना? तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट सिंपल है, गोल्ड भाग भी सकता है, नहीं भी भाग सकता है। ओके, बट स्टिक विथ योर एसेट एलोकेशन, डोंट ओवर इन्वेस्ट इन गोल्ड इफ यू ऑलरेडी हैव 10-15%। आर यू क्लियर? इफ यू डोंट हैव एलोकेशन टू गोल्ड, वैसा इंडिया आज तक कोई इन्वेस्टर मिला ही नहीं है मैं जिसका पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं है। आर यू क्लियर? तो स्टिक विथ योर एसेट एलोकेशन, दैट इज वेरी वेरी। नाउ वेयर डू इंडियंस गो रॉन्ग? शैल आई आंसर? ओके, वेयर डू माय एक्सपिरियन्स इज, एंड आप लोग बरेच लोक कुठे चूक करतात मनी मॅनेजमेंटमध्ये, उनका प्रोविडेंट फंड में पैसा है, वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड भी डबल करके रखा है, PPF में तो 5 अप्रैल के पहले पैसे डालना ही है, सुकन्या में भी पैसा डालना है। अभी थाली में तुमने इतना डेट ले लिया है, लोन ले लिया है, नंतर म्हणतात SIP साठी अय्यर भाऊ पैसेच नाही है, तो किधर ना किधर कुछ ना कुछ हल्का करना पड़ेगा। संदेश का कितना लोन है? 5 लोन है, 3 होम लोन, 2 कार लोन। ओके, तो किधर ना किधर गड़बड़ है। वो 40 लाख का 45 लाख में उसको भोसरी का घर बेचना पड़ेगा, लेकिन ही डजंट वांट टू सेल। Am I right in saying this? That is where Indians go wrong in asset allocation. So let us stick with asset. Simple logic. My logic is, जिसके पास provident fund है उसको PPF जरूरी नहीं है, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग। एग्री करते हो? PPF is ideally for a businessman, but many salaried friends उनको PPF चाहिए, पप्पांनी सांगितलं 5 एप्रिलचा अगोदर टाकणारच टाकणार. ओके, I don't blame them also.
ओके, बिकॉज फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है. एनी अदर क्वेश्चन सर? The audience, otherwise we are top of the hour. प्रश्न विचारा. Any questions? Yeah, yes, please. One question is, all the time you explain very nicely that putting the money in FD is not so good. Now, most of us are senior citizens and they enjoy 0.5% or 0.75% extra. We know that the taxation, in long-term capital gain is 12.5% after 3 years, whereas FD, depending upon your income, it may go to 30%, 35%. But do you think putting the money is very bad? Because you said the portfolio should be 100 minus your age, like we are 70 years old people, average. So 30% is available for putting in. नहीं, इफ यू गुड क्वेश्चन. अगर इफ यू टेक, मैं मेरा अंकल का एग्जांपल भी दिया था. 75 ईयर्स में जीरो इक्विटी है, मालूम नहीं है तो मत डालो. एंड एट दैट एज डोंट रिस्क योर एंटायर कैपिटल. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इफ यू डोंट नो, कंफर्टेबल नहीं है तो एडवेंचर वो एज में बिल्कुल मत करो. बिकॉज लॉ विड्रॉवल. हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट. हाँ, सी एनपीएस में ऐसा भी ऑप्शन है जो आपके एज के हिसाब से इक्विटी एक्सपोजर कम होता रहेगा. दैट इज अनदर प्लस पॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर, द वे द प्रोडक्ट इज डिजाइन. So I am not against NPS. NPS is also a good concept, but only challenge is वो 40% हमारे कंट्रोल में नहीं है एंड वो भी टैक्सेबल है एज पर करंट रूल्स. तो SWP में पूरा पैसा आपके कंट्रोल में है. दैट इज द स्लाइट एडवांटेज ऑफ SWP. We'll take one last question. एंड एवरी पर्सन का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग है. दैट इज वेरी. यस सर. गोल्ड ETF किंवा सिल्वर ETF करावा का? पोर्टफोलिओ में नसलं तर नक्की करावं, असलं तर वाढवू नका. 10-15 यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग, डोंट पुट मोर. आर यू क्लियर? एंड सिल्वर इज गुड एसेट. अपॉर्चुनिटीज ABCD रीजन के चलते रहेगा, बट सिल्वर विल बी मोर वॉलेटाइल देन गोल्ड. आई रिपीट, सिल्वर विल बी मोर वॉलेटाइल देन गोल्ड. इसका सिंपल रीजन है, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा है. अभी इंडस्ट्री डाउन में गया, चाइना डाउन गया, तो हो सकता है सिल्वर ज्यादा गिरे. आर यू क्लियर? अभी ईवी का क्रेज है, तो दैट इज अनदर रीजन व्हाई सिल्वर इज शूटिंग अप, बिकॉज हर ईवी में कुछ ना कुछ सिल्वर होता है. अभी एक और थियरी आया है मार्केट में. ओके, आई डोंट नो, अगर अवेयर है तो अच्छा है. अभी बहुत लोग बोलते हैं ईवी बंद करो. क्यों? क्योंकि ईवी चार्ज कैसे होता है? थर्मल पावर से हो रहा है. रिन्यूएबल्स पे फोकस ऑफ कोर्स है, बट व्हेन यू आर चार्जिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल विथ थर्मल पावर, इट इज इक्वली पोल्यूटिंग लाइक अ पेट्रोल और डीजल व्हीकल. तो इफेक्ट ऑफ ईवी इज नलीफाइड. आर यू क्लियर? इसीलिए तुम चार्जिंग स्टेशंस भी देखो तो बहुत एकाध कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान भी कम कर दिया है. आर यू क्लियर विद दिस? तो इंडस्ट्रियल डिमांड कम होगा तो हो सकता है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट जस्ट ट्राई कनेक्टिंग द डॉट्स. ओके, हो सकता है सिल्वर प्राइस कम हो जाए. एंड डेटा ये बोलता है कि सिल्वर इज मोर वॉलेटाइल देन इक्विटी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल यूज. ऐसा तो ब्रेस अप फॉर मोर वॉलेटिलिटी. रिटर्न ज़्यादा आने का चांस है, बट इट विल बी डेफिनेटली मोर वॉलेटाइल देन गोल्ड बिकॉज इंडस्ट्रियल डिमांड उसका ज़्यादा है. थँक यू सर. थँक यू. थँक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. आय शुड थँक यू. अच्छा सर, यांचा पण एक प्रश्न विचारू, विचारा ना. हां हां. मॅच्युअर लिक्विडिटी कन्सर्न नाही आहे तर कंटिन्यू करा. सिम्पल लॉजिक. लिक्विडिटी तुमचा आहे, तुमचा एक्झिस्टिंग पेन्शन किंवा एक्झिस्टिंग अदर इन्व्हेस्टमेंट्सपासून तुम्ही तुमचा कॅश फ्लो, खर्च सी रिटायरमेंट नंतर युअर एक्सपेन्सेस ब्रोकन अप इंटू 3 पार्ट्स, LLH, लिव्हिंग, लाईफस्टाईल, हेल्थ. आय रिपीट, तुमचा बेसिक कॉस्ट इफ यू आर एबल टू मीट फ्रॉम इट कुड बी ओल्ड पेन्शन और सम अदर source of investment, passive income से, and make sense to continue also. It is purely personal. So 2 days back, I saw on Z Business there was a program that they how changed the rules for new NPS accounts, not the old ones. Yes, yes. In which you can invest in 100% equity. हाँ. And besides that, the age limit you can start has changed 75 onwards. So they were discussing कि 75 च्या पुढे कोणाला इंटरेस्ट असणार
असणार तो पण आहे ना. सी बऱ्याच लोकांचा तुमचा कॅश फ्लो जर मेंटेन होत आहे, आता माझा फादर इन लॉ, माझा काकांचा फ्रेंडचा त्यांचा 20 कोटी रुपये आहे, तर ही कॅन, इफ युअर कॅश फ्लो एव्हरीथिंग इज इन कंट्रोल, देन मे बी ही कॅन डू दॅट ऑल्सो. दॅट्स जस्ट अ थॉट. थँक्यू. Mr. Krishnan, thank you very much. So I was little late to join. नाही, मी रिकॅप करू शकतो टाइम असलं तर 2 मिनिटात फुल ट्रेनिंगचा, बिकॉज Fine, मेनी if you पीपल want to, केम लेट. But I thought maybe I'll just share my learning basically based on whatever you told. Basically, you have covered it so nicely. Asset allocation basically it is something like knowing your own diet. Second is just as we talk about KYC. I think the basic thing for any investment is that know yourself. So Yes. what is your risk appetite? So your risk appetite along with your food appetite, possibly these are the two most important things which you should think about going for any mode of investment. And coming to the recent changes, obviously that is the need of the hour. We had so many products 25 years back, none of them exist today, or maybe there are so many which never existed 25 years. So just as you said, in COVID, all senior citizens learned to be techno savvy. Possibly the knowledge also holds the key. So maybe a combination of three only will make sure whatever remaining life is there, prosperous and healthier and maybe more happier also. Thank you. Thank you. I can do a recap because some people came late. I am happy that many people came because टाइम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है बॉम्बे वाले लोग के लिए. एग्री करते हो? स्पेशली वीकेंड वाला. ओके, तो स्कूल में हमें एक फॉर्मूला सीखा है BOD-MAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन. सबको मालूम है, बहुत लोग अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सिखाता रहेगा. ओके, तो मनी मॅनेजमेंटचा बोर्ड मास काय HITTS. आय रिपीट HITTS. हे तुम्हाला गुगलवर भेटणार नाही, मेड बाय कृष्णन अय्यर आहे. हेल्थ, HI म्हणजे काय? हेल्थ. बिगेस्ट वेल्थ क्या है एक आदमी के लिए? हेल्थ है. ओके, शक्कर नमक कम करो, वाइट पॉइजन है. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट अगेन कन्सल्ट अ डॉक्टर. ओके, नेक्स्ट स्वतःचा हेल्थ इन्शुरन्स असणं महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट टर्म इन्शुरन्स काढणं अजून महत्त्वाचं आहे. 90% लोक भारतात हे दोघं करत नाही, म्हणून गडबड आहे. नेक्स्ट याला सॉफ्टवेअर अपग्रेड पण महत्त्वाचं आहे. काढत नाही तर सॉफ्टवेअर अपग्रेड वेगळा विषय झाला. ओके, तर नेक्स्ट इज थाली. हा थालीमध्ये प्रॉव्हिडंट फंड, PF, PPF, एव्हरीथिंग इज निडेड इन राईट बॅलन्स प्रपोर्शन. इंडियन्स आर ओव्हरलोडेड विथ डेट. FD आणि गोल्डमध्ये किती 10-15हून जास्त इन्व्हेस्ट करू नका. रिझन वी हॅव डिस्कस. आणि माध्यम डिजिटल केलं तर बरं. ओके, नेक्स्ट इक्विटी म्हणजे काय? किती कमीत ते कमी 5 years प्लस देणं महत्त्वाचं आहे. अगेन एव्हरी पर्सनल फायनान्स पर्सनल असतं. ॲट माय एज 48 आय कॅन हॅव 52% एक्सपोजर टू इक्विटी. Again, my financial planning and my school friend Jagan's financial planning will be huge difference. Why? Because my son is 12 years old, Jagan's daughter is 20 years old. Okay, so my finance, I need money after 5 years. Jagan may need money after 5 weeks also for her daughter's engineering. So that is where personal finance, never copy anyone. आणि SIPचा माध्यमातून इंटरेस्ट कसं रिकवर करू शकतो ते आपण शिकलोय. ओके, 1.5%. ओके, टॉपअप केलं तर 14 yearsमध्ये आरामात रिकवर करू शकतो. SIP इज लाइक फ्रॉम विरार टू बैंड्रा. ओके, भाईंदर में ट्रम्प आएगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा. 2008 में इससे ज़्यादा खराब सिचुएशन था. ओनली थिंग तभी मीडिया नहीं था, सिंपल. तभी व्हॉट्सअप नाही था. ओके, तर इकडे ट्रेनिंग संपवतो. आणि चुकीच्या ठिकाणी पैसे इन्वेस्ट करू नका. बरेच लोक, काही लोक उशीर आले. दुप्पट तिप्पट स्कीम, ओके, महीने का 4% रिटर्न, 5% रिटर्न, सबसे डेंजर वाला स्कीम, उसमें पैसा मत डालो. वेल्थ क्रिएशन इज इजी. ओके, दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला कुटुंबाला. Thank you, Mr. Krishna. You summarized it well, and I thank once again Mr. Sane for summarizing whatever our learning through this whole program is. It's been wonderful. Actually, you have been able to relate with us, to the level where we expect you to and understand the issues there. So thank you so much for that. Thank you. I thank HDFC Mutual Fund for sponsoring this program for us. Next Sunday we'll have a program which is we are holding it along with National Stock Exchange. So you will get to learn a lot many things which exchanges have been doing in terms of regulations to protect investors' interest. So do get your young ones to attend the program. We look forward more participation from the younger generation. Thank you so much.